Gujarat and Maharashtra. That was separated today. So both the days are being celebrated on one day, 1st May. Though this is Labor Day also, though this is World Laughter Day also, we are celebrating Laughter Day tomorrow because in our opinion, the serious topics should be promoted with relation to Ayush. And today we are celebrating Maharashtra Day and Gujarat Day with your kind permission of the guardians. And we have invited senior dignitaries from Gujarat and Maharashtra. Everybody is renowned. Everybody is renowned. Welcome, sir. Welcome on the platform. And I am really grateful to you all. Dharmadhikari sir is joined, Deputy Director, Ayush Maharashtra Government. Dr. Kishor Baldanea from Jamnagar. After a long time, sir, welcome. Dr. Rampal Somani ji, Member Pharmacopoeia Committee, Ayurveda. Professor Vijay Agnihotri ji from Uttarakhand. Dr. Madan Thangvelu sir, Senior Genome Biologist in Cambridge University from UK. Dr. Sri Anupam Mishra ji from Calcutta. He is very senior dignitary in press and media. Dr. Shaikh sir, ex-principal, Government Akhandagan Ayurvedic College, Gujarat. So we have jewels, sons, not only jewels, SUN sons. So how can I enlighten any flame or lamp before them to introduce them? We need your blessings forever. This platform is yours and we are celebrating every day to negate the negativity of COVID-19 because in the COVID, the situation was very serious and everybody was pulled and filled with the negativity. We have tried to aware the public, not go to fear. Please don't fear. And we have solutions in our Ayush therapy, which is the traditional system of our country. Jagdishwar ji pranam, Nilesh Gandhi ji pranam, Jayesh Thakkar ji pranam, और सभी Vijay Jadhav ji pranam, very senior dignitary from Maharashtra. I am really overwhelmed with the support, contribution, blessings and guidance from you all and request you all to bless us always. Today is our 365th journey, 365th journey in 18th month. We started this Ayush Samriddhi webinars on 13th of August 2020. And now in approximately 20-21 months, we have been able to reach the milestone of 365. Without your support, guidance, and blessings, it was not possible at all. So I welcome you all on the platform. Patankar sir, really I am grateful to you for Maharashtra. Welcome, welcome sir. Dr. Khan Sahib, Sheikh Sahib, Baldanea Sahib from Gujarat, Dharmadhikari ji from Maharashtra. So without wasting much time, I would like to hand over mic to respected Madan Thangvelu sir for his unique moderation. I am also a learner from him. Dr. Madan Thangvelu sir, senior genome biologist from Cambridge University, UK. Welcome sir, welcome. Pavanji, namaskar. Namaskar. Thank you. Today is a very special day. In 1960, on this day, the 1st of May, the two states of Gujarat and Maharashtra came to existence from the bigger state, which was then. And it is also around the world, it is also, so it was carved out of Bombay state, which was a very, very large state. And both this day has been celebrated with great enthusiasm since that time. So now keep in mind, it's a very relatively recent event. It's only 62 years ago that this happened, in 1960. And talking about paramparas, we can see how important it becomes
to celebrate these things. Today is also International Labor Day. People around the world are celebrating that. And as Pavanji says, several other events are going on today. We are very happy, additionally happy to have with us Anupamji and Radhikaji here with us, following us and seeing how we conduct our activities. Thank you both for joining us today, and you will both be panelists on events to come. The question of parampara is very exciting, and particularly for Ayurveda. When we look at the old text, Charaka Samhita, that we are all following, or the other texts, we can see behind these texts the value of paramparas. Now, I'm told that Charaka Samhita and the people who put these texts together were followers of the Sankhya tradition. And the Sankhya tradition finds its way all the way back to Sandipani Muni. And these were people whose followers are still seen in the different akhadas in Banaras. You will see this parampara being maintained. But in terms of the medical work and the health-related work, these two texts, the texts are very important. There is the affiliation to these paramparas. There are schools even today who connect with one or two of these texts. People in the south of India connect with Ashtanga Hridaya. People in Maharashtra, Gujarat connect with Charaka Samhita. And that is an indication of the following that they have for these traditions. Although the lineage is not very distinct and clearly presented, but it exists there. And sitting here in Cambridge, I just want to give you one example before I pass the floor back to Pavanji to start the proceedings. We have a parampara here. This university is in excess of 800 and odd years. It is not the oldest university in the world. And for us in this university, the contemporary thinking is all shaped by one parampara. And that parampara celebrates its 70th anniversary next year. And it's the DNA parampara. The structure of DNA was discovered here in this. And next year, in 2023, we will be celebrating 70 years. And this, to put this in perspective, the 70 years, we have to look at the existence of these older texts. Keep in mind, Charaka Samhita, the most recent redaction, is about 2,500 years old. And we need to bring all these messages out for people. And these messages out for the common man, messages out for people in other parts of the world, to understand the scale at which this work has maintained its continuity. So 70 years next year for DNA, which is the talk of the whole world, versus Charaka Samhita, which is part of an even longer parampara that goes back to many, many thousands of years. But Charaka Samhita, the most recent redaction that we have that is used as a textbook of Ayurveda in every part of the world, is at least 2,500 years old. At least. There are earlier versions that go back. And we don't celebrate this. And today is very special in that we'll get the chance to listen to senior Vaidyas from the two states of Maharashtra, what is today Maharashtra and Gujarat. Maharashtra is a special state because it has the largest number of Ayurveda colleges in any one state in India. Similarly, Gujarat has come to fame, and more recently, it is taken on the task of becoming the global center, the state that's going to host the global center for traditional medicine, along with the World Health Organization, which will happen in that princely state of Jamnagar, in the city of Jamnagar. And these are all expressions of that one word, parampara. So we look forward to listening to our senior Vaidyas from the two states today. Thank you so much for joining us today. Pavanji, thank you for bringing so many people together. I would particularly want to thank Rajan Patankarji, who is here with us, who comes from another family parampara of Vaidyas in Mumbai. And Rajanji connects very deeply into the grassroots activities of Ayurveda
and the Vaidyas across Maharashtra. So with those few words, I welcome all of our panelists to the event. Thank you so much for being with us, and thank you so much for sharing your knowledge as we proceed through today's events. Pavanji, thank you so much. Anupamji, namaskar. Shaikh Sahab, namaskar. If Pavanji is not here with us, I take the opportunity to introduce firstly the team from Maharashtra. I would like to Pavanji, namaskar. Dharmadhikari ji is Deputy Director Ayush in Government of Maharashtra, and I am really grateful to Dr. Rajan Patankar Sahib for again introducing me to Dharmadhikari ji, and I am grateful to Dharmadhikari ji for joining this platform again. Sir, your presentation is with us. Kindly bless us with your valuable, inspiring speech. Welcome, sir. Welcome, Dharmadhikari, sir. Hello. Yes, please. Yes. You are audible. Yes. You are audible. Yes. नमो नमः. आयुर्वेदादितिनः सन्तु सर्वे भारत भूमिजाः आयुर्वेदेन कुर्वन्तु व्यवहारं परस्परम्. अहं वैद्य वेंकट धर्माधिकारी महोदय अत्र महाराष्ट्र शासने सहायक संचालक रूपेण कार्यं करोमि, तथा ससून रुग्णालये आयुर्वेद विभागस्य प्रमुख रूपेण मम दायित्वं विद्यते. अद्य इंडिपेंडेंट रिसर्च इथिक्स सोसाइटी तथा MED फार्मा द्वारा महाराष्ट्र दिनम् उपलक्ष्य आयोजिते महाराष्ट्र गुजरातयोः वैद्य परंपरा इति विषयम् अधिकृत्य परिसंवादे उपस्थिताः प्रोफेसर विष्णु प्रसाद शर्मा महोदयः, तथा अधुना तैः प्रास्ताविकम् अपि कृतं, तथा डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा महोदयः, तथा च डॉक्टर मदन महोदयः, प्राध्यापक अग्निहोत्री महोदयः, तथा अस्मिन् परिसंवादे मया सह व्याख्याता रूपेण सम्मिलिता वैद्य राजन पाटनकर महोदयः, वैद्य विजय जाधव महोदयः, तथा च गुजरात वैद्य परंपरा विषये डॉक्टर शेख महोदयः, डॉक्टर प्रेरक शाह महोदयः, डॉक्टर किशोर चंद्र महोदयः. अहं प्रथमं तावत् अस्य संस्थायाः अभिनन्दनं करोमि यत् सातत्यपूर्णं परिसंवादस्य आयोजनं भवद्भिः कृतं. तस्मिन् मध्ये अस्य गौरवपूर्ण स्थानं मया प्राप्तं. राजन पाटनकर महोदयेन श्वः एव उक्तम्, अस्माकं गौरवपूर्ण स्थानं गिनीज बुक मध्ये अपि जातं. तदर्थे अहं भवताम् अभिनन्दनं करोमि. अद्य महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्ययोः स्थापनादिनं वर्तते. तस्मिन् मध्ये अद्य मम प्रेजेंटेशन अत्र विद्यते. तया साकं भवान् सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि. अनन्तरं अद्य मराठी भाषायाम् एव नेक्स्ट प्लीज. अग्रे मराठी भाषायां मया यत् क्रियते स्लाइड रूपेण. नेक्स्ट प्लीज. हेलो हेलो. Venket ji, नहीं आवाज आवाज. Yes, sir. Yes, Okay. your voice is coming, sir. ओके नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्लाइड. Next. Slides are moving here, but not moving there, sir. ओके ओके नो प्रॉब्लम. ओके. अद्य अस्माक महाराष्ट्र आवाज थोड़ा घट. महाराष्ट्र में पहले आवाज ऐसा क्यों. एकाच ह्याच्यावरनं जॉईन. ओके. महाराष्ट्र में आयुष डायरेक्टर के माध्यम से पहले आयुर्वेद
मैं आयुर्वेद परंपरा, गुरु परंपरा जो है आज की, उसके बारे में मैं अपना विचार यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। तो उसमें जो है महाराष्ट्र जो है ये आज का उसका महाराष्ट्र दिन जो है, उसमें मैं जो स्लाइड किया है उसमें लिखा है कि महाराष्ट्र दिन का महत्व। तो गुरु परंपरा के बारे में मैंने जो अभी स्लाइड किए, तो पहले जो स्लाइड है तो उसमें हमारे जो यहाँ पे जो परंपरा है, मराठवाड़ा जो एरिया है, वो मराठवाड़ा पे एरिया में जो है हमारे कट्टी सर और धर्माधिकारी सर यहाँ भूतपूर्व डायरेक्टर थे, और उनका जो एक अलग शिष्य संप्रदाय था, और वहां से मेरी पढ़ाई हो गई। मैं 95 से आयुष में जुड़ा हूँ। पहले महाराष्ट्र में यवतमाल में था, यवतमाल से फिर बीड़ में ज्वाइन होने के बाद पहले महाराष्ट्र में आयुष मेडिकल एजुकेशन और ड्रग डिपार्टमेंट से चलता था, अपना आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के माध्यम से यहाँ पे अपना काम चलता था। उसके बाद जो है कि आगे हमने जो, मैं बीड़ में काम करता था, जब हमने वहाँ पे पंचकर्म की सुविधा करने के लिए बहुत काम किए, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा आयुष का अलग जो है वहाँ पे स्थापना की गई। उसके बाद में आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ आयुष इन महाराष्ट्र स्टेट, आई एम नोडल ऑफिसर। पहला मेरा ट्रेनिंग महाराष्ट्र की तरफ से हुआ, और उसके बाद में मैंने पूरे महाराष्ट्र में आयुष का ट्रेनिंग लिया। तो मैं 2008 में जो है ये अपना आयुष का जो है तो ये IPHS के अंदर आ गया। 2010 में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष यहाँ महाराष्ट्र में हो गया। वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा एंड मसाजिस्ट, उनका ट्रेनिंग हो गया। 256 इंस्टीट्यूट में आयुर्वेदिक का अपना काम शुरू हो गया था। और Kindly guide me for slide number, sir. पहले ये मैं जो बोल रहा हूँ वो स्लाइड और वो कोरिलेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो उसमें जो है ट्रेनिंग मैंने पूरे महाराष्ट्र में आके सब लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिलवाया, और ट्रेनिंग हो जाने के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र में आयुष का काम बढ़ता गया। तो पहला जो ट्रेनिंग जो हुआ तो उसमें 2009 के जनवरी में मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो दिल्ली में है वहां गया था। वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करके मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष का पूरा महाराष्ट्र में ट्रेनिंग हो गया, और उसके बाद में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष फॉर एलोपैथिक मेडिकल अफसर, उनके लिए भी हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी। और उसके बाद में महाराष्ट्र में अभी जो स्लाइड यहाँ पे मैं किया था, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं, तो उसमें जो है ये जो पहला स्लाइड है अपने सेक्रेटरी है, दूसरे हमारे डायरेक्टर है, और गुरु परंपरा के बारे में मैंने यहाँ पे बोला है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ये गुरु के सिवाय आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता है। और ये जो अपना जो चल रहा है सेमिनार, उसमें ये एकम शास्त्रम आदियानो न विद्या शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम ज्ञानीयात स चिकित्सका, और नीचे का जो श्लोक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रम गुरुमुखोदगीर्णम आदाय उपास्य चाशु। गुरु के मुख से शास्त्र लेके तुमने उसका स्टडी करके उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर तुम किए, सकर्म कुरुते वैद्या, वही वैद्य है। अन्य तो तस्करा, अन्य तस्कर बोले तो चोर है, ऐसा तो ये जो गुरु परंपरा है, मैं जो गुरु में पढ़ा हूं, तो पहला जो यहाँ पे नीचे का स्लाइड है गुरुवर्य एकनाथ महाराज खड़केकर, नीचे का स्लाइड है उसके नीचे का। तो उसमें है इन्होंने मेरे को पूरा संस्कृत पढ़ाए। आपको बोलने को लिए मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरा संस्कृत का अध्ययन, मैं जो आयुर्वेद पढ़ता था तो आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते मेरा संस्कृत का अध्ययन ये संस्कृत पाठशाला में हो गया था। और वहां पे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वहां पे वैद्य एकनाथ महाराज खड़केकर बोल के जो हमारे टीचर थे वो अभी नहीं रहे, उनके पास में मैं पारंपरिक पद्धति से गुरुकुल से संस्कृत पढ़ा हूँ, और मैं शास्त्रीय और आचार्य साइमल्टेनियसली किया हूँ। और उनकी गुरु की कृपा से मैं शास्त्रीय परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में प्रथम था, और उन्होंने मेरे को संस्कृत का जो पढ़ाया है
तो मेरा पूरा स्टडी संस्कृत मीडियम में हो गया। और उसके बाद में ये जो परंपरा है आगे फिर नेक्स्ट प्लीज, आयुर्वेदिक कॉलेज में जब गया, जब हमारे जो टीचर है उसमें अनंत धर्माधिकारी बोल के हमारे को बहुत अच्छे टीचर मिले। नेक्स्ट प्लीज। तो ये इनको सब जानते हैं, इनको चरक निरूपण वगैरह इनके हमेशा रहते हैं और संहिता का अध्ययन बहुत अच्छा है। ये इनकी वजह से मैं प्रशासन में होते हुए भी क्लिनिकल टच में हूँ, तो ये पूरा श्रेय उनको है। और ये जो सर है वो उनकी कृपा से मैं यहाँ ससुन में भी काम करता हूँ। एक्चुअल आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर, बट आई एम होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ क्लिनिशियन एज HOD ऑफ काय चिकित्सा इन ससुन हॉस्पिटल। तो यहाँ बहुत पेशेंट देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात है कि इन्होंने मेरे को MD को जो पढ़ाया है, मेरा MD का थीसिस भी संस्कृत में ही है। तो ये गुरु परंपरा, और इससे हमारे को जो हमारे महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा जो एरिया है उसमें काफी सारे स्टूडेंट, और अभी सर के 150 के ऊपर संहिता निरूपण हो गया है। और उनका अभी हमने अमृत महोत्सवी के रूप में वर्ष ये साल बनाया है। नेक्स्ट प्लीज। उसके आगे जो हमारे गुरु है, नेक्स्ट प्लीज। तो वैद्य बिंदु माधव कट्टी बोल के है, इनको ये मराठवाड़ा में बहुत मशहूर थे। उनका मलाचार्य बोल के इनकी पहचान थी। ये हर पेशेंट का मल परीक्षण करके उसका निदान करते थे। मैं जब हाउसमैन था तो कम से कम मेरे को 50-60 पेशेंट का बेड पैन में जाके स्टूल का एग्जाम करके उनको लिख के बताना था। और उनका एक स्पेशलिटी थी कि कौन सा भी पेशेंट आया, उसको कौन सा भी डिसीज हो, तो उसको 13 स्रोतस का उसका परीक्षण करके उसको हेतु वगैरह निकाल के उसको ट्रीटमेंट देना है। ये हमारी उनके, और आनंद की बात है इनके नाम से बहुत सारे लोग हमारे महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मैंने बोला है कि ये गुरु परंपरा के बारे में, तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा शासन परंपरा थोड़े आपके सामने रखूं कि हमारे महाराष्ट्र में अभी जो आयुष का मैं जो अभी बोला कि मेरे को बहुत आनंद है कि आयुष का प्रारंभ जो है महाराष्ट्र में करने का सौभाग्य मेरे को मिला। तत्कालीन हमारे आयुष के डायरेक्टर थे वैद्य कुलदीप राज जी कोहली, उन्होंने मेरे को पहली बार भेजा था दिल्ली में, और उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में अभी ये क्या, अभी महाराष्ट्र की में करंट पोजीशन है कि अभी आयुर्वेद के 250, होम्योपैथी के 226, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, इतना मैन पावर अभी ये है। और इसके माध्यम से अभी आयुष का काम यहाँ चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो आयुष का महाराष्ट्र में जो कॉलेज है, जैसा अभी प्रस्तावना में बोला गया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉलेज जो है, तो अपने महाराष्ट्र में है आयुर्वेद के 77 कॉलेज है, उसमें गवर्नमेंट के 5 और गवर्नमेंट एडेड 17 है, होम्योपैथी के 54 है। अभी एक होम्योपैथिक का नया गवर्नमेंट कॉलेज खुलने जा रहा है और यूनानी के 7 है। ऐसे टोटल 138 इतने आयुष के कॉलेज है। ये आयुष के कॉलेज और ये मेडिकल एजुकेशन और ड्रग डिपार्टमेंट से आते हैं, और दूसरे जो है वो पब्लिक हेल्थ में, ऐसा दोनों तरफ से हमारे यहाँ आयुष का काम चलता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये करते समय आज का जो मेन है कि समाज में काम करते समय अपने को गवर्नमेंट सेक्टर, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट प्रैक्टिशनर, ये त्रिदोष मैं मानता हूं। ये त्रिदोष का जब युगपत प्रकोप हो तभी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता है। नहीं तो खाली मैं जहां जहां जाता हूं तो वहाँ के लोकल हेल्थ अथॉरिटीज, DHO, सिविल सर्जन और वहाँ के आयुष के प्रिंसिपल्स और लोकल रिनाउंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर, उनसे मैं मिलता हूँ, उनकी मीटिंग लेता हूँ, और आयुष का काम कैसा आगे चले इसका मैं प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये अभी हमारे जो महाराष्ट्र में कुछ कैंप हुए 2 साल में, तो ये इसके पेशेंट और इसका टोटल है 1736 कैंप हुए, उसमें टोटल 6 लाख के आसपास हमने यहाँ पे पेशेंट देखे हैं। नेक्स्ट प्लीज।
तो आज का जो मेन ये है कि मेरे को ये बताने का उद्देश्य नहीं है कि अपने इधर काम करते समय गवर्नमेंट सेक्टर में अपने को प्राइवेट प्रैक्टिशनर का भी योगदान बहुत जरूरी है। मैंने बीड़ में जो काम किया है, जब ये आयुष नहीं था, आयुष तो बाद में शुरू हुआ, तो 2000 में मैंने आयुर्वेदिक जो हमारे डिस्पेंसरी थी डिस्ट्रिक्ट में, तो 2013 तक बोले तो 1996 में मैं वहां गया और 1996 से 2013 तक तकरीबन 17 साल मैं वहां था। तो मेरे 2-4 बार ट्रांसफर हो गए, लेकिन वहां की जो पब्लिक है उन्होंने मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवाया और मेरे को धन्वंतरी कृपा से वहां बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। मैं वहां राजवैद्य था, तो कलेक्टर से सब लोग मेरे पास आते थे और उसमें जो है ना, हमने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसा कैसा कर सकते हैं, ऐसे जो कोई अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है। तो मैं एक प्रसंग आपके सामने शेयर करता हूँ। एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया था, तो परिचारिका दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल 11 मई को रहता है पूरे वर्ल्ड में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे। तो वहां पे हमने एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया था, तो वहां पे कलेक्टर सीओ सब लोग थे। तो उसके बारे में, तो वहां पे कोई भी प्रोग्राम हो तो मेरे को बोलते थे, वो आयुर्वेद के जो है, मेरे को आयुर्वेद के अध्ययन करने से जो सम्मान मिलता था, तो वो बोलते थे, कलेक्टर साहब बोले कि अभी आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो मैंने वहां पे जो है कि अनुरक्त सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारिका, ये चतुष्पाद, और उसमें जो मैं बोला कि अनुरक्त, ये अनुरक्त बोले तो वहां पे रहना, तो वहां पे मैं बोला कि हेडक्वार्टर में जो रहते हैं वो सिस्टर का जो हमारे इधर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, उसमें अनुरक्त सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारिका, अनुरक्त यानी वहां पे चिपका हुआ, तो हेडक्वार्टर में रहना है। तो दूसरे दिन में न्यूज़पेपर में आया कि हेडक्वार्टर रहने के लिए आयुर्वेद ने बोला है, तो आयुर्वेद का अवलंब करो। तो वहां पे जो है आयुर्वेद का जो है, वहां पे लोकल इसमें कैसा प्रचार प्रसार करना है। हमारे स्वाइन फ्लू आया था, हमने बहुत अच्छा काम किया थे। 2-4 घड़े पानी डालना, उसमें गुड़वेल डालना और 4 घड़े का 1 घड़ा होने तक आउटाना, और वो जो काढ़ा बनेगा वो गांव के लोगों को पिलाना। ऐसा बहुत रूट में हमने काम किया है। कौन से भी स्कूल में कैसा आयुर्वेद बढ़ाना, या हर कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें कैंप कैसा लेना, उसका ये करना। बीच में हमने महिला बाल कल्याण विभाग से जो महिला के कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने हमने महिला के इसमें भी हमने उनको च्यवनप्राश कैसा बनाने का है, तेल कैसा बनाना, ऐसा किया। ये मैं अभी जो स्लाइड बताए, नेक्स्ट प्लीज। नगर पालिका अंबेजोगाई में मेरे दिमाग में आया कि भाई आयुर्वेद में ये इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं। हमारे इधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब इंडिया में एक कंपटीशन रहता है, संत गाड़गेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, उसमें जो कॉर्पोरेशन फर्स्ट आता है उसको बख्शिश मिलता है। तो मैं कलेक्टर साहब को बोला, क्यों नहीं हम उसका आयुर्वेद का इंटरवेंशन करें। हमारे महाराष्ट्र में अंबेजोगाई बोल के गांव है, बहुत बड़ा तालुका प्लेस है। तो वहां पे हमने नगर पालिका के माध्यम से हमने वहां पे एक धन्वंतरी उद्यान का निर्माण किया, और जब वो टीम आई, जब धन्वंतरी उद्यान के इससे वो अंबेजोगाई कॉर्पोरेशन को फर्स्ट प्राइज मिला, तो कलेक्टर साहब बोले ये जो प्राइज मिला है वो पूरा उत्तरदायित्व आयुर्वेद को है, तो इसलिए आयुर्वेद अपनाओ। और हमने वहां पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो वहाँ लोकल थे उनका करके हमने लोकल मेडिसिनल प्लांट का यूज कैसा करना, ऐसा कुछ किया है। तो ऐसे बहुत अभी जो कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहां पे मैं काम करता था। जैसा एनएसएस में प्रोग्राम है तो वहां पे जाके करना। तो अभी बच्चे का जो आंगनवाड़ी, तो उसमें मैं बहुत बड़ा बोर्ड लगाता था, आपको अगर आपके बच्चे होशियार होना है तो आयुर्वेद और अपनाओ। तो मैं बोलता था कि आपको बच्चे को अगर 60% परसेंटेज है, मैं बढ़ा दूंगा, उसको 10% ज्यादा मिल जाएगा। तो ये जो है, तो हर एक इसमें मेरी कल जो बात हो गई थी हमारे मित्र राजन पटनकर जी से, मैं उनको बोला कि जब तक आयुर्वेदिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट में काम करने में बहुत दिक्कत आती है, तो जो गवर्नमेंट के सेक्टर में जो प्रभावशाली व्यक्ति है, चाहे कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, या लोकल लीडर हो, वो लोकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। अगर उन्होंने उनको बोले कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में आयुर्वेद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए,
तो ये बूस्टअप गवर्नमेंट में काम करने वाले को लोग होना है। तो मेरा जो आयुर्वेद प्रचार प्रसार का जो रहस्य है, गुरु की कृपा है, आप सब लोगों की शुभेच्छा और आशीर्वाद है। और जहां भी जाता हूँ तो कोई, मैं जब इंस्पेक्शन को जाता हूँ तो लोकल, वहां पे कॉलेज में जब मैं इंस्पेक्शन जाता तो लोकल के आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को मैं मिलता हूँ, उनका और वहाँ के हेल्थ अथॉरिटी का एक लेता हूँ। एक मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, मैं जब मुंबई रीजन में असिस्टेंट डायरेक्टर था, वहाँ पे धुलिया बोल के हमारे महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने एक प्रयोग किया। तो वहाँ पे एक शिरपुर तालुका था, तो शिरपुर तालुका में अपने आयुर्वेदिक PSC 5 थी और वहाँ पे एक आयुर्वेदिक कॉलेज था। तो कॉलेज को भी मैं उनको ग्रांट देता था और वो आयुर्वेदिक PSC को भी मैं ग्रांट देता था, और दोनों को भी मैं जब ग्रांट देता था तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं इनको ये करे। तो फिर मैं तालुका मेडिकल अफसर इनको करके मैंने एक 2-4 साल में एक अच्छा है वहां पे कैंप का आयोजन किया। हर दो साल में 2 महीने के बाद एक PSC में कैंप होता था, और हमारे जो एक्सपर्ट सर्विसेज ऑफ प्रोफेसर इन आयुर्वेदिक कॉलेजेस शुड बी यूटिलाइज इन रूरल एरिया, ये मेरा एम था। तो बहुत आप जैसे बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर है, उनको मैं देहात में लेके उनके माध्यम से वहाँ पे जो पेशेंट है उनकी जांच करता था, और वहाँ पे जो लोकल अपने मेडिकल अफसर है उनका भी रीओरिएंटेशन मैं करता। बहुत बड़े मेडिकल अफसर मेरे को बोलते थे, सर मेरे को आयुर्वेद सीखना है, मैं भूल गया हूँ, तो क्या करने का है। तो मैं उनको बोलता था एक एक डिसीज का कैंप ले, उसका एक केस पेपर बनाओ, जब सर आते हैं वो पेशेंट को कैसा देखते हैं देखो, और उसका फॉलोअप करो, और फिर नेक्स्ट विजिट को जब सर आएंगे तो ऐसे मेरे इससे बहुत बड़ा जो है डॉक्टर इसमें जो है आयुर्वेद का अवलंब कर सके, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करे। और मेरे को बोलने को बहुत खुशी है, ये वसुंधरा कला महाविद्यालय जो डाला है, ये राष्ट्रीय सेवा योजना में मैं बहुत काम किया। कोई भी आमदार हो, खासदार हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का कुछ हो, तो मैं जो है वहां पे अपना आयुर्वेद का क्या कर सकता हूँ उनको बोलता। तो समय की मर्यादा है, तो यही माध्यम से ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। तो ये यही माध्यम से मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष जो अपने को आगे करना है, तो उसमें ये जो अपना जो आज का जो अपना प्लेटफॉर्म है महाराष्ट्र की वैद्य परंपरा, तो मेरे लिए आप सब यहाँ पे आयोजन करने वाले हैं और ये सब मेरे लिए गुरु है। मैं आपको वंदन करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये हमारे MLA है वहाँ के लोकल, और आपको मैं बोलता हूँ दूसरे दिन जो आया वहाँ का एक बहुत बड़ा आरोग्य मेला था, वहाँ पे अभी प्रकाश दादा सोलंकी मिनिस्टर थे। तो लेकिन भगवान की कृपा मैं जहाँ जाता था तो बोलता था, अब उनको मैं बोलता था आपको अगर चुन के आना है तो आयुर्वेद का अवलंब करो। तुम अगर आयुर्वेद के शिविर ले, आयुर्वेद के बारे में लोगों को बोले, तो दूसरे दिन बड़े पेपर में मैंने वो न्यूज डिलीट किया, बहुत बड़ी न्यूज आई थी दूसरे। तो हमारे लोकल हेल्थ अथॉरिटी एलोपैथिक वाले बोले अरे क्या हमने इतना खर्चा किया और पूरा आयुर्वेद ने सब खा लिया बोले प्रोग्राम। तो ये मैं उनको समझा के बोलता था कि आयुर्वेद अपने पॉलिटिकल करियर के लिए कैसा टूल अच्छा है। तो उनको बोलता था वो धर्माधिकारी साहब तुम्हारा क्या है, बोलो हम कुछ करेंगे, हमारे लिए क्या करने का है। तो हम बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम लेते थे। और ये जो न्यूज है कडुलिंबाचा तौर और चिंचेचे मिश्रण, और लोकल में था, एक दिन गुड़ी पाड़वा था, नया वो साल, तो एक दिन मेरे को सकाल ऑफिस से एक फोन आया, सर बोले कि आज गुड़ी पाड़वा है तो उसके बारे में आयुर्वेद के बारे में तुम क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तुम कडुलिंबा चिंच मिरे ये डाल के तुम ले सकते हैं। और उन्होंने मेरे को बोला, मैं बोला कि ये हम ये वमन करते हैं, सब लोगों को वमन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने किया है। ये योग और प्राणायाम हमने वहां पे किया था। तो ये लोकल वहां पे कुछ काम नहीं था, ये 2000 की बात है। तो वहां पे जो है ने, तो हमारे वहाँ डॉक्टर सारडा जी है और मैं हूँ, वहां पे हमने ये काम किया और उसका जो आउटकम मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो लेटर है तुम देखो, ये हमारे कमिश्नर साहब का लेटर है, आयुष अंतर्गत प्राणायाम योग, और उन्होंने मराठी में लिखा है कि डॉक्टर धर्माधिकारी ने जैसा अरेंज किया है योग का, वैसा पूरे महाराष्ट्र में आप ये योग और प्राणायाम का कैंप अरेंज करो और ये रिकॉर्ड से फिर
पूरे महाराष्ट्र में हो गया। और जो लोग मेरे को बोले क्या धर्माधिकारी तुम कुछ भी करते हो, हमारे पीछे कुछ काम लगा दे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसलिए नहीं बताया कि आपको ऐसा नहीं लगना कि मैं मेरा आत्म प्रौढ़ी बता रहा हूँ या मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आयुर्वेद का जो काम है, ये अभी आशा का ट्रेनिंग हम ले लेते, तो तुम्हारे को मैं बोलता हूँ कि हमारी आशा को मैंने पूरा बताया था कि खाना कब खाना है, कि प्रसृष्टे विनमुत्रे रुधि सुमिले दोषे सुपदगे। वो आंगनवाड़ी को मालूम था कि भूख नहीं लगती, पेट साफ नहीं होता, आलस है, गौरव है, तंद्रा है, तो खाना नहीं खाना है। तो उनको तेल कैसा बनाने का है। तो एक आशा इसमें जो है, एक आशा को मैंने, एक निर्गुड़ी हमारी तरफ बहुत है, तो निर्गुड़ी का ऑयल बनाने के लिए मैंने बोला था। तो निर्गुड़ी का ऑयल, मैं सिंपल मेरा मेथड था, एक ऑयल लेना 1 लीटर और निर्गुड़ी का रस, स्वरस निकालना 1 लीटर, दोनों मिला के मंद उष्णता देके उसका तेल बना। तो वो निर्गुड़ी का तेल बना के वो गांव में देती थी। तो उसको अच्छा, उसको क्या पगार नहीं रहता है और उसको अच्छा पैसा मिलता था। तो एक दिन मैं गया तो वो बोले कि सर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और खुशी की बात है, उन्होंने एक मोपेड लूना, एक व्हीकल लिए, लेकिन मैं बोला उसके पीछे डॉक्टर धर्माधिकारी कृपा मत लिखो, तुम करो। तो ऐसे कुछ बहुत अच्छे सारे अनुभव है कि मैं लोकल लोगों को जो है उनको व्यवसाय कैसा करना, उनको अपॉर्चुनिटी कैसा आना, पैसा कैसा मिलना। जैसा मेरा एक है कि 0 बजट आयुर्वेद प्रैक्टिस कैसा करना, ये मेरा सब्जेक्ट है। मैं हमेशा जो इंटर्नी को बोलता हूँ कि नीम के पत्ते ले, पड़ुचे ले, और उससे पैसा कैसा ले। और मेरा सौंठ और जीरा, ये मेरा फेवरेट 2 ड्रग है, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि दीपरम पाचनम यस्यात् उष्णत्वात् द्रव शोषणम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकम गज पिप्पल। ग्राही है और सब व्याधि में, जैसे रोगा सर्वपि मंदग्नो बोला है, तो ग्राही दीपन पाचन देना ही है। तो इसलिए मैं ये हमेशा जो है इसका यूज करता हूँ। और हर पेशेंट को जो है मैं आर्ष में जो चिकित्सा सूत्र बताया है उसका अवलंबन करने को बोलता हूँ। यद वायो अनुलोम्याय यद अग्निबल वृद्धये अन्नपान औषध द्रव्यम तत्सेवम नित्यमर्जते। वायु का अग्नि वृद्धि करो और वायु का अनुलोमन करो, ये बोलता हूँ। और जहां जहां अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां काम मैं करता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरा समय समाप्त हो गया है। आपने मेरे को यहाँ बुला के, जो क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेसर, ये सब विद्वान लोग हैं, तो उसके साथ भी जामनगर से ये बहुत बड़े लोग हैं, तो उनके सामने मेरे को आपने जो बुला के यहाँ पे जो अवसर दिया है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। विशेषतः राजन पाटनकर जी के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ और मेरे को बहुत आनंद लगा कि आज महाराष्ट्र दिन जो है, महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र का जो स्पेशलिटी है कि हमारा जो है खान पान जो है, आहार, और महाराष्ट्र इसके बहुत है। हमारे इधर अग्निवर्धक आहार कैसा लेना है, लाइफस्टाइल है, इसका बहुत अच्छा होता है। और गुजरात तो आयुर्वेद का हब है। तो अभी गुजरात में अभी जो प्रोग्राम हो गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी सर आ गए और अपना WHO का एक बड़ा वहाँ पे एक माइलस्टोन अपने ये हो गया। तो इसी हिसाब से सब इनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं संस्कृत में बोलना चाहता था, लेकिन मैं राजन जी बोले कि इतना तुम हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा। तो उनका एक स्वभाव है, वो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते तुम संस्कृत मत बोलो, तो बोले कि हिंदी में बोले तो अच्छा है। तो मैं समझ गया, तो इसलिए मैंने ये किया। तो बाद में सर्वेषां हम धन्यवादाः ददामि। यहाँ अत्र हम विरमामि। धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट 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 टू लिसन यू सर। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप तो हिंदी बड़ी स्वीट बोलते हैं सर। ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है सर, आपका प्लेटफॉर्म है। आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और एक भावना और है, यदि मेरे विद्वान गार्जियंस पटनकर साहब, मदन सर, अग्निहोत्री जी परमिट करें, ये हम 2 भाई थे। हम नहीं जानते कि 2 राजनीतिक कारणों से कब अलग हुए, कैसे अलग हुए, इसका इतिहास मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब कोई भी एक परिवार में 2 भाई भी अलग होते हैं तो थोड़ी गर्मा गर्मी से अलग होते हैं।
ये अपन ने देखा है, दो भाई भी अलग होते हैं। यहाँ तो दो स्टेट अलग हो गई सर, गुजरात अलग, महाराष्ट्र अलग। तो मैं फिर एक ब्रिज के रूप में काम करता हुआ मैं आदरणीय शेख साहब को गुजरात से आमंत्रित करता हूं। एक गुजरात एक महाराष्ट्र, दोनों ऐसे बहुत मिल बढ़िया। जाएं, ऐसे दोनों मिल जाएं कि दोनों में अलगाव की कोई भावना ही नहीं हो। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, ये सब हमारा भारत है और भारत में हम सब लोग निवासी हैं। उसी हिसाब से मैं आदरणीय डॉक्टर एम शेख साहब को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय शेख साहब प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल थे अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के। डॉक्टर एम शेख साहब फ्रॉम अहमदाबाद। सर आपका वीडियो चालू है, ऑडियो म्यूट है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर एम शेख साहब। मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है सर शेख साहब? आदरणीय डॉक्टर एम शेख सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है ना सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शेख सर प्रणाम सर, वेलकम। शेख साहब परहैप्स इफ्तिहार का टाइम होगा। ओ आज ईद है। इफ्तिहार तो रमजान मैं के टाइम हो गया। सॉरी मैं आदरणीय किशोर बलदानिया जी को गुजरात से आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर किशोर बलदानिया जी मेरे बड़े भाई, मेरे स्टूडेंट लाइफ के मेंटर, जो आज 30 साल बाद उनके दर्शन होंगे। ऐसे एक विद्वान आयुर्वेद के, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कई पदों पर सुशोभित किए हैं। मैं ऐसे डॉक्टर किशोर बलदानिया जी को आह्वान करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर चंद्र जी, एम आई ऑडिबल टू यू सर? बलदानिया सर, welcome sir, welcome sir, you are unmuted sir. I would like to welcome Dr. Bagga sir from USA. Welcome sir, welcome. बग्गा जी प्रणाम, नमस्कार जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार okay. नमस्कार। पवन जी बलदानिया सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। पवन जी आप शेख साहब म्यूट है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस, वेलकम वेलकम सर। आवाज नहीं आ रही है। एक बार देखो। नहीं म्यूट, आप अनम्यूटेड है लेकिन आवाज नहीं आ रही सर। सर एक बार हेडफोन का जैक चेक कर लीजिए, या तो बिना हेडफोन के ट्राई करिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। किसी दूसरे मोबाइल से भी अटेंड हो। यस,
हेलो, क्या मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल जी, आपका आवाज तो आ रहा बिल्कुल साफ। पवन जी जी सर। आदरणीय किशोर बलदानिया जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। किशोर सर, आप एक बार बिना हेडफोन के बोलने की कोशिश करिए। आप ईयरफोन को रिमूव करके, क्योंकि आपका ऑडियो ऑप्शन इज ओके बट वी कैन नॉट लिसन यू। जब तक बलदानिया जी एक बार सर निकल के और रीज्वाइन होंगे तो जरूर होगा अच्छा। एक बार मीटिंग लीव करके विदाउट हेडफोन फ्रॉम एनी मोबाइल। तब तक मैं आदरणीय राजन पटंकर जी से आग्रह करता हूं कि जब तक किशोर भाई ज्वाइन हो रहे हैं, आदरणीय राजन पटंकर जी, आज महाराष्ट्र की धुरी आप ही हैं। स्वागतम स्वागतम सर। पहले आप सबको बधाई, क्योंकि आज नॉट आउट 365 ये आज का हमारा वेबिनार है। तो इसके लिए आप सबको बधाई, क्योंकि आप कैप्टन है पर हम सब लोग आपके साथ में एज ए टीम तो है, तो इसके लिए आपको बधाई। आज एक महाराष्ट्र के हिसाब से बहुत ही थोड़ी सी दुखद घटना ये हो गई कि हमारे भल्लातकाचार्य जिनको हम कहते थे ये गो जोशी सर, उनका सुबह देहांत हो गया। उम्र के हिसाब से, बाकी कुछ बीमारी वगैरह थी नहीं। उनका जो काम था वो भल्ला तक के बारे में बहुत ही अच्छा था। भल्ला तक एज ए एंटी टॉक्सिक ड्रग वो अलग अलग फॉर्म में यूज करते थे। भल्ला तक की टॉफी बनाई थी, बाद में भल्ला तक के जो चिक्की रहे थे वो बनाई थी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग भल्ला तक के फॉर्म वो यूज करते थे। तो उनके पहले श्रद्धांजलि अर्पण करके मैं आगे बात करना चाहूंगा। उन्होंने पूरा चरक संहिता मराठी में लिखा था और अष्टांग हृदय की हिंदी में आवृत्ति और उसके ऑडियो और वीडियो ऐसे भी उन्होंने दोनों भी उनके प्रकाशित हो चुके हैं। परंपरा के बारे में कहा जाए तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी परंपरा है। उसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दिन 19 अप्रैल को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। तो उसमें जो थोड़े से जो वैद्य की जो परंपरा है, वैद्यों की जो छूट गई थी, उसके बारे में मैं सिर्फ उनके नाम लूंगा, क्योंकि उनके बारे में भी अगर कहने को लगूंगा तो कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो जैसे वो समय नाना जोशी जी की जो परंपरा थी कि जो पंचकर्माचार्य, उसके बारे में भी वो समय बातचीत हो गई थी। कुछ जो लोग रह गए थे उसमें की जो पुरुषोत्तम नानल परंपरा की जो पुणे में वो समय उनके बारे में कोई बोलने वाला मिला नहीं था। बाद में वाघोली में जिनका इंस्टीट्यूट है कि जो सरदेश मुख सर, उनके बारे में भी कहना रह गया था, क्योंकि कैंसर की बहुत बड़ी इंटीग्रेटिव अप्रोच
ऐसी वो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट और कॉलेज वहाँ पे वो चलाते हैं और गए 40+ ईयर्स से उनका ये काम चालू है। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कहूँगा कि उनका कहना ऐसा है कि कैंसर कैनॉट बी क्योर्ड बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन, बट वो पेशेंट का या वो पर्सन का लाइफ जो है वो हम लोग थोड़ा सुखकर बना सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक और एलोपैथी अगर इंटीग्रेटिव कुछ काम करेगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाद में पहले समय में जैसा कि कोलटकर सर या करमरकर सर, उनके बारे में भी बातचीत हो गई थी। बाद में एक और परंपरा की जो जलगांव से वडोदकर की जो परंपरा है सर की, उसमें जितने भी भाई थे सभी भाई अलग अलग इंस्टीट्यूट में या तो प्रिंसिपल या लेक्चरर ऐसे थे। तो उनके सुपुत्र को मैं लाने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ कारण वजह से वो नहीं आ पाए। बाद में जैसा अभी धर्माधिकारी सर ने कहा कि खट्टी सर की भी एक बहुत बड़ी परंपरा, और एक बात रह गई कि पूना के खड़ी वाले शास्त्री जो थे उनके बारे में भी पिछले समय कहना रह गया था। वो आज का जो दिन है कामगार दिन, वो खुद को ऐसा समझते थे कि मैं सिर्फ कामगार वैद्य हूँ, मैं कॉमन मैन के लिए ज्यादा हूँ और बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए वैसे देखा जाए तो कम। और मुझे ऐसा खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे बहुत जो महानुभाव थे या जो दिग्गज थे उनके साथ मेरा संबंध आया और उनसे बहुत सारी बातें भी सीखने को मिली। तो ये मैं मेरा भाग्य समझता हूँ। आयुर्वेद को आगे ले जाने के लिए चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, मेरे ख्याल से 2-3 बातें उसमें मैं कहूँगा कि जो भी आजकल के विद्यार्थी है उनको मेरे ख्याल से अच्छा आयुर्वेद मतलब कि जो प्रैक्टिकल आयुर्वेद है वो सिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि सब सिर्फ लोग थियोरी में बहुत मजबूत है, पठन में भी मजबूत है, पर जो आयुर्वेद का जो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच, वो उनको ऐसे देखा जाए तो बहुत कम सिखाया जाता है। बच्चे लोग आजकल एमडी करते हैं, पर एमडी करते समय जो विषय लेकर के एमडी करते हैं उसी में प्रैक्टिस करने वाले भी बहुत कम स्टूडेंट्स या बहुत ही कम एमडी दिखाई देते हैं। तो उसके लिए उनको एमडी के लिए सब्जेक्ट देते समय एक ऐसा ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कुछ अलग रिसर्च करके वो सबके सामने लाए, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए जैसा धर्माधिकारी सर ने कहा कि अवेयरनेस, कि जैसा सिर्फ पब्लिक में ही नहीं, उनके इसमें भी अवेयरनेस लाना आयुर्वेद के बारे में जरूरी है। तो इसके लिए आयुर्वेद को अगर सिंपल करके सिखाया जाए, तो ये मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत भर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी है वो बहुत ही अच्छी तरह से आयुर्वेद की तरफ देखने भी लगेगी और उसमें अलग अलग टाइप के रिसर्च भी करने लगेगी। हमारे जो मित्र है कि जो अभी बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो जयंत देव पुजारी सर, उनका हर बार यही कहना था कि आजकल के बच्चे रिसर्च करते हैं कि जो कि उनको रिसर्च करना चाहिए, और सब्जेक्ट इतने हैं कि अगर हम लोग चरक भी खोलेंगे तो चरक के हर एक सूत्र में हर एक जो शब्द है उसके ऊपर एमडी या पीएचडी हो सकता है। तो ऐसा ही उनका भी कहना था। तो आज के दिन मैं दोनों राज्यों के जितने भी महानुभाव है उनको बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू मदन तंगवेलु सर, थैंक यू पवन कुमार जी, थैंक यू अग्निहोत्री जी, थैंक यू डोमा जी, और थैंक यू विष्णु प्रसाद शर्मा जी। सो थैंक यू वंस अगेन। मदन सर। Pawan ji, namaskar ji. Pawan ji, namaskar. Rajan ji, thank you so much. You gave a very quick review, अलग-अलग परंपरा महाराष्ट्र की और नानल परंपरा etc. अब I want to, before I forget, I want to highlight one जो धर्माधिकारी जी ने जो यूज किया, एक
शब्द जो प्रयोग किया, एक्सप्रेशन जो किया, जीरो बजट आयुर्वेद, बहुत बढ़िया. So I think Dharmadhikari ji, you have used a very beautiful expression, zero budget Ayurveda. Or Maharashtra say we are already seeing zero budget agriculture also coming from Maharashtra. So this is a very lovely expression. I hope people in Maharashtra will feel proud of this expression, zero budget Ayurveda. Or आपने जो 3-4 चीज जो बताया, it was really lovely. So with those few words, I think Rajan ji picked up that point and he said पूरा देश के लिए होनी चाहिए zero budget Ayurveda. So Rajan ji इसके ऊपर करेंगे ये चर्चा ऑफलाइन. धर्माधिकारी जी भी उनको भी ले आए इस चर्चे के ऊपर कि क्या चीज है जीरो बजट आयुर्वेद और कैसे इसको ले चलें पूरा अलग अलग राज्यों की तरफ. वेरी एक्सलेंट एक्सप्रेशन. पवन जी, थैंक यू. पवन जी, आपकी इजाजत लेके अगर हम पीछे से निकल जाएं यहाँ से, I hope you will let me, you will permit me. I will be here till the last minute till I can join. धर्माधिकारी जी, थैंक यू सर, थैंक यू. आपने जो प्रयोग किया जी शब्द, we appreciate it deeply, zero budget आयुर्वेद. इसके ऊपर करेंगे जी एक पूरा मीटिंग और इसके ऊपर करेंगे जी चर्चा. So we Rajan ji will arrange. बहुत धन्यवाद जी. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू. इसको खाली हमारी देश में नहीं, पूरा दुनिया पर ले जानी है जी, क्योंकि हमारी आते रहते स्वीडन से लोग बाग, वो भी पूछ रहे हैं कि हमारी देश में क्या कुछ है जड़ी बूटियां, how can we use it for our health, and you have given an example कि कैसे हो सकती है काम. Please let us discuss this one also जी. Thank you. Thank you sir, thank you sir. नमस्कार जी, नमस्कार. Thank you so much. Now I would like to introduce Dr. Prerak Shah. He is being awarded at present in the function in Ahmedabad as Gujarat Gaurav Ratna Award. So he has, congratulations to him. And Dr. Prerak Shah is internationally renowned Ayurvedic consultant, teacher and motivational speaker. IULink, he is founder, managing director of IULink, a platform promoting 4 divisions, hospitals, education, exports, and clinical research. He is having of international chain of franchisee at present in USA, Germany, and Spain. Unique approach he is having to treat arthritis, migraine, and ulcerative colitis, as well as pain management. He has visited 27 countries, so his CV is very long. He is very kind enough to bless the platform first time, and he has sent me his speech in video. Please allow me to communicate his speech. नमस्ते मित्रों, अहमदाबाद से वैद्य प्रेरक शाह का जय धन्वंतरी. आज गुजरात का स्थापना दिन है. पहले में गुजरात दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन पर डॉक्टर पवन शर्मा जी ने मुझे इनवाइट किया है. ये आपका इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस सीरीज चल रही है उसमें आज गुजरात के वैद्य परंपरा के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है. आयुष समृद्धि का ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, वैद्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ये मैसेज देती है. ऐसी एक्टिविटीज़ का बहुत स्वागत रहता है हमेशा. और गुजरात के वैद्यों के बारे में आज सब आप लोग जानेंगे कि यहाँ पर भी वैद्य परंपरा बहुत साल से है. शुरुआत करें तो गुजरात में वैद्यों की नाम की शुरुआत मैं करूँगा. जब तक मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ वो अगली 4 या 5 पीढ़ी तक के वैद्यों में पहला नाम मैं लूँगा झंडू भट्ट जी का. हम सब जानते हैं झंडू फार्मास्यूटिकल का नाम जानते हैं, झंडू कंपनी का नाम जानते हैं. जो झंडू कंपनी का जो फाउंडर जो थे, जिनकी नींव रखी थी, जिनका नाम यूज हुआ है, वो झंडू भट्ट जी जामनगर के वैद्यराज थे और वहीं पे उन्होंने पूरा कार्य किया था. और उनके साथ में 1940 में डॉक्टर PM मेहता, हालांकि वो वेस्टर्न डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन उनकी आयुर्वेद में बहुत सारी रुचि थी और उन्होंने आयुर्वेद की प्रवृत्ति को ज़्यादा वेग दिया.
तो जामनगर के जो जाम साहब थे, जो किंग थे, राजा थे जामनगर के, इनके डॉक्टर PM मेहता वैद्य थे और जंडू भट्ट जी भी उनके साथ काम कर रहे थे। तो 1940 में उन्होंने एक आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट बनाने की सोची। 1944 में उसका बिल्डिंग बना, क्योंकि जाम साहब ने, किंग ऑफ जामनगर ने, ये जमीन और उसके लिए जो भी खर्चा चाहिए वो सब देने के लिए तैयारी बताई। 1946 में जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जो अब हम जानते हैं आज, उसकी पहली बिल्डिंग 1946 में बनी और 1946 में कॉलेज शुरू हुई। हालांकि PG का जो सेक्शन था वो 10 साल के बाद शुरू हुआ, IPGT NR जिसको हम आज बोलते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट की जो कॉलेज थी वो 1946 में शुरू हुई। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी आज़ादी के साथ साथ ही गुजरात में आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ है। उसके साथ में उसी जमाने में जो जब कॉलेज बनी पहली, तो हम सब ये नाम जानते हैं कि यादव जी, त्रिकम जी आचार्य, बहुत सारी बुक्स हम उनकी पढ़कर आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आचार्य जी हमारे आयुर्वेद इंस्टीट्यूट के पहले प्रिंसिपल बने और उसी जमाने से कई सारे नाम ऐसे हैं कि जो राजवैद्य के नाम से जाने जाते थे। हालांकि जो गुजरात में भी छोटे मोटे रजवाड़े थे, उनके जो राजा के साथ काम कर रहे थे, उसमें लीडिंग नाम हम देखते हैं तो एक तो राजवैद्य रसिकलाल जी परिक। हालांकि फिर से बात करें कि रसिकलाल जी पहले MBBS डॉक्टर बने, बाद में आयुर्वेद पढ़े, आयुर्वेद में इतनी मास्टरी कमाई, वो राजवैद्य भी थे, साथ में वो वाइस चांसलर भी, पीछे जाकर आगे जाकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। रसिकलाल परिक के बाद हम बापालाल जी का नाम देते, बहुत आदरणीय वैद्य बापालाल जी, जिनके लिए माना जाता था कि वनस्पति खुद उनसे बात करती थी, औषधियों के साथ वो बात करते थे, औषधि उनसे बात करती थी। तो बाबालाल जी का नाम बहुत आदरणीय है। हमारे गुजरात में एक और वैद्य थे, गोविंद प्रसाद जी, उनका इतना मान मर्तबा था कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता था। हमने ऐसा सुना है कि गोविंद प्रसाद जी विदाउट अपॉइंटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते थे और उनकी इन्फ्लुएंस, हालांकि उनकी कैपेसिटी, वैद्य की कैपेसिटी के अनुसार वो एक प्राइम मिनिस्टर को भी उनकी महत्ता समझ आ रही थी कि गोविंद प्रसाद जी इतने बड़े वैद्य थे। जामनगर में साथ में जब से इंस्टीट्यूट बनी है तब से बहुत सारे नामांकित वैद्य बने, जिसमें कुछ नाम ऐसे हैं कि जैसे वैद्यराज CP शुक्ला जी, जिनको हम चरक के अवतार मानते थे और बाय हार्ट चरक का पूरा चरक संहिता बाय हार्ट था। कहीं से भी कोई भी एक श्लोक या एक लाइन शुरू करो तो वो पूरी लाइन के बारे में आपको डिटेल विवेचना कर सकते थे। उनकी एक और मास्टरी थी कि आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हम कई बार उनको बोलते थे, इतना परफेक्शन था। उसी जमाने में साथ में वैद्य विजय ठाकर साहब, बेसिक प्रिंसिपल के मास्टर, पूरे इंडिया में जाने जाते थे। दोनों CP शुक्ला साहब और विजय ठाकर साहब एक ही काल में एक ही यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, एक ही शहर में रहते थे और दोनों मास्टर अलग अलग सब्जेक्ट के थे। साथ में तीसरे भी एक त्रिपुटी थी, साथ में एक वैद्य बालकृष्ण जी थे, वो नाड़ी वैद्य थे, वो भी राज वैद्य थे, राजा की नाड़ी भी देखते थे, तो वो भी नाड़ी वैद्य थे। उसके साथ में अब हम बात करते हैं कि जामनगर से बाहर आकर गुजरात के अनेक शहरों में अनेक वैद्यों ने काम किया है। हम अब बात करेंगे अराउंड 1970s 80s के बारे में। तो 70s 80s में जो वैद्य जाने पहचाने बने, उसमें पहला नाम मैं दूंगा कस्तूरे जी। पूरे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया कहीं भी जाते हैं तो पंचकर्मा का नाम सुनते हैं तो कस्तूरे जी का नाम सबने जाना होता है। उनकी लिखी हुई बुक्स हम पढ़ते हैं। कस्तूरे जी इज द स्टैंडर्ड नेम फॉर पंचकर्मा। वो यहाँ अहमदाबाद में बसे हुए थे, अहमदाबाद में पूरा जीवन उन्होंने निकाला है। शोभन वसाणी, वैद्य हार्डिकर जी, दो भाई थे हार्डिकर जी, दोनों भाई, एक बड़ौदा में एक अहमदाबाद में, दोनों मास्टर थे और उनको हम दादा ही बोलते थे। दादा, हम नाना दादा जैसे बोलते हैं। तो एक प्रतिभा ऐसी थी कि मास्टर ऑफ एवरीथिंग। लाभ शंकर ठाकर कि जो वैद्य भी थे, साथ साथ में साहित्य में भी उनका बहुत योगदान है। उनका साहित्य के लिए भी काफ़ी अवार्ड्स मिले। वैद्य किरीट पंड्या मेरे गुरु थे, इंटरनेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट, उनकी मास्टरी डर्मेटोलॉजी में थी।
और 1980s के ज़माने में वो करीबन 25-30 कंट्री घूमते थे। धनशंकर पंडित जी जो धनाकाका के फेमस नाम से हमें यहाँ जाते थे, प्रखर नाड़ी वैद्य, माधव प्रसाद आचार्य जी, हमारे एक्स प्रिंसिपल वैद्य M.H. बारोट जी, बहुत सारे वैद्य एक परंपरा में ऐसे हुए कि जो अब देखते हैं कि 1970 से लेकर अभी 2010-2015 तक की ये वैद्यों की मैं लिस्ट आपको बोल रहा हूँ। और सबके सब वैद्य पूरे आयुर्वेद को, ये पूरे गुजरात की जनता को आयुर्वेद में जकड़ के रखने के लिए ये सब सक्षम थे। इन्होंने आयुर्वेद की सेवा की है और लोगों को आयुर्वेद के प्रति बांध के रखा है और इतने अच्छे परिणाम दिए कि लोग आयुर्वेद के प्रति हमेशा बंधे हुए हैं। गुजरात में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा एसोसिएशन है। मेरे हिसाब से करीबन 200 से ज़्यादा फार्मेसीज रजिस्टर्ड है। यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी कंपनियां बनाकर बेचती है। तो गुजरात में आयुर्वेद की दवाई हर प्रकार के सिंगल हर्ब से लेकर फॉर्मुलेशंस आसानी से मिलते हैं। लोगों की आस्था भी आयुर्वेद में बहुत सारी है और लोग आयुर्वेद को प्रीफर भी करते हैं। कोरोना के बाद तो अभी एस्टैब्लिश हो गया। गुजरात सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया था कोरोना के बाद, जिनमें सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई एलोपैथी में अगर समझो कि एक ट्रीटमेंट, कोरोना की जो ट्रीटमेंट होती थी उसमें 10 दिन के बाद फायदा हुआ है, तो आयुर्वेद से 8 दिन के अंदर फायदा हुआ है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो गुजरात सरकार भी आज आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा उत्तेजन देती है और वैद्यों के लिए यहाँ एटमॉस्फेयर हमेशा से अच्छा बना हुआ है और अब तो और अच्छा बन रहा है। तो ये थोड़ा आपसे मैंने गुजरात की वैद्य परंपरा के बारे में आपसे मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर की और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेरक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका, though you are not physically with us, but you are virtually with us always, as we hope, and as I discussed with you, I would like to welcome you again. Thank you, Dr. Prerak Shah ji. This link is live on YouTube, so everybody can see these links on YouTube. Now again we come to Maharashtra, and our friend, philosopher and supporter, Dr. Vijay Jadhav ji, is now founder of Tathagat Ayurveda International Ayurveda Academy. So I would like to welcome Dr. Vijay Jadhav from Maharashtra to bless the platform on this Maharashtra Day. And I don't know what to say, but happy Maharashtra Day to all Gujaratis and happy Gujarat Day to all Maharashtrians. To make a bridge, because two are not separate, sir, in my opinion. MP Chhattisgarh. My father was principal in Raipur, that is in now Chhattisgarh. So how can I separate that? In our opinion, Maharashtra and Gujarat both are brothers. So unfortunately they are separated, but fortunately we are meeting on one platform today. Welcome, welcome and welcome. Dr. Vijay Jadhav ji. Can you listen me, sir? Yes. Am I audible? Clear, Am I audible? Yes. Sir, new look, Jadhav ji, new look. It is an old look, sir. Coming after some days. In college, I used to keep beard. Then I had clean shave, but now I have kept beard, sir. Fine, sir. Hearty congratulations to you. I think that this is your 365th webinar. I was very fortunate to join you in last 2-3 webinars where you had told me to speak on various topics, and I tried my level best, but that time I was out of Pune. So every time it was a problem for me, but then too I did my best, I think so, and you appreciated it. So thanks for that. And I'm also thankful to the co-host of this program. And just one day before, Dr. Rajan Patankar, Honorable Dr. Rajan Patankar sir, told me that I have to speak on Guru Parampara. And he has committed you. So I said, okay, I had a very short time with me. But being a teacher, I can speak. But speaking is not only a common thing for a teacher, but what I suppose is that, first of all, I will like to pay tribute to
my principal, my professor, my teacher, Dr. IRES Joshi sir, whose name was mentioned by Patankar sir. He was principal when I took admission in Prerak Ayurved Mahavidyalaya, which is an oldest college in Maharashtra. And I was very fortunate to have good teachers like IRES Joshi, Bhapu Nanal sir, then his two sons who carried out his legacy forward, that is Vilas Nanalji in Pune and Ramesh Nanalji in Mumbai. So also their sons, means the third generation has been here. And I would also like to tell you that though I am an Ayurveda teacher, though I am an Ayurveda graduate and postgraduate, I was very unfortunate that I couldn't join any guru in my college days because I come from a very poor family. So I had to work in my free hours, like the vending milk, vending newspaper, to earn my livelihood. So, but I used to see my friends going to various Vaidyas and doing their practices and increasing their knowledge. But in front of me, there was a question of do or die. But when I came out of college and started my practice, I was totally unaware of Ayurveda. For me, Ayurveda was a substitute way of becoming a doctor. But I happened to come with a very big accident in the year 1991. And that accident was, I entered in the academic field of Ayurveda, which entirely changed my attitude towards looking towards Ayurveda. And then I became really a good Ayurveda teacher, what I say, and also a good Ayurveda physician, and started my work. I have a small experience of 30 years in Ayurveda academic. And Pavanji, you know, I am a person of Raj Shastra, but then too I have my practice here in Pune. Sometimes I practice, and I have also done many other things out of India and other states also. You were saying that why the states should be get separated. So I would like to tell you now, Dr. Prerak Shah mentioned that the first Vice Chancellor, Dr. Thakar sir, who wrote the book of Ayurveda research, means how Ayurveda research paper should be written by the MD students, was a guest here in Pune for a small function organized by me. Same as Dr. Shuklaji, Vaidyaraj Shuklaji, was a very renowned and well-do person in Ayurveda from Jamnagar University, also visited Pune to my place for a small function. So this is the relation between Gujarat and Maharashtra. And to be very frank with you, the first guru which I had after so many years, say I was big, that time I was around about 15 or 20 years in my job. I met a very fantastic person from Gujarat, that was Vaidya Dhirendra Joshi. And Vaidya Dhirendra Joshi was the fourth generation in Ayurveda, and he was the fourth generation practitioner in Rajkot and also in Ahmedabad. For a certain period, he was also in Akhandananda College, and he was on all the posts of Jamnagar University, that is IPTGR. So he was my guru. He was my guru, and he taught me many things in Ayurveda on clinical basis. Because as a Raj Shastriya, I had an opportunity to meet many people. Say I met stalwarts like Damodar Joshi sir. I met stalwarts like S.K. Dikshit from Varanasi sir, Dr. Anand Chaudhary in this young generation, Dr. Prajapati in this young generation. And for my good thing was that when I joined my college, I was joined in the department of Dravyagun Raj Shastra, and as a HOD, I had Professor Dr. Tanuja Nesri madam. At present, she is the director of IAAM in Delhi, and she's also the member of NCISM. So it was a very sheer and privileged work to me to work with these beautiful people. And then staying in this line of academic, I came to an conclusion, and that conclusion I came after 10 years in my service as an academician. And I would like to say some Hindi words, or I could like to speak in Hindi also, because I think Hindi touches your heart. So after 10 years in my academic, I learned that a guru should produce a guru. A guru should not produce a shishya. So your shishya or your disciple should have that capacity that you have. Otherwise, he should be better than you. So that is the paramparik vidya which is given by the gurus. And that is really, because just now many people told about Charak Sanhita. So say Charak Sanhita, Sutrasthan. If I start reading, I read, say around about after 3 months, 2 months, I just go through Charak Sanhita. But I'll tell you very frankly, I read a simple sutra, and every time, I have some great knowledge from that.
I think why this sutra has been said. So while explaining this big knowledge of Ayurveda, I think Guru is supposed to be the first person who introduces you to all these fantastic things in your Ayurveda Academy. And I have very fortunate to have very good teachers in Prerak Ayurveda Mahavidyalaya, like Dr. Subhash Ranade, Dr. Yaga Joshi, which I mentioned, Bapu Nanal sir, his son Vilas Nanal sir. Then I also had an opportunity to work with Dr. P.H. Kulkarni sir, and many more. But as a guru, I first saw Dr. Koletkar, which Dr. Rajan Patarkar mentioned. So my friends used to go there to when I had some time, I used to go and visit my friends at his place. So my first guru of Ayurveda, which I had seen, I had not learned anything from him, but I saw that was Madhav Koletkar sir. He was a very genuine teacher, and now today only itself, after his demise, then and Vaidya Mitra, Madhav Koletkar Pratishthan was established, and today they had a very big quiz competition in Pune by Koletkar Pratishthan, and I think 65 teams from all over India have participated. So this was the first guru of Parampara in Maharashtra, which I saw. The second guru which I saw personally is Nana Joshi from Dhule, a very great man in Panchakarma treatment. Teaching Panchakarma was a fantastic thing with him, and he has so many disciples who are doing best things. The two best disciples, what I can name here in his name, is Vaidya Ramdas Award sir, who is a RAV guru also, and he's practicing in Kopargaon, which is a district place in front of Shirdi, 25 kilometers from Shirdi. He's doing very well, and at least he has 40 students out of Maharashtra who are learning in his posh Panchakarma clinic. It's a matter of pride and privilege that Ramdas Award is a physician of the Bollywood actor Ajay Devgan and Ajay Devgan's family. So it's a pride. It's a pride for Ayurveda practitioner. It is a pride for Ayurveda student. So one of that student, the second student is Dr. Narendra Gujarati, who has done his PG from IPGTR Jamnagar, but he works on the feet of Nana Joshi ji, and he is a leading physician in Jalgaon, who's doing very well, and he too have number of disciples in his clinic, whom they are coaching, and they are doing best for Ayurveda. The third guru I came to see, I met was Dr. Bhagyawadekar Shastri. He was very well aware of all the herbs. There are so many herbs that we also don't know, but he was well aware of that. And he was in a mastery of making rasa aushadhis in a fantastic way. And he also had a large number of disciples in his school or in his clinic. The second last gurus which I saw is Professor Dr. P.H. Kulkarni, sir. Can you hear me, sir? Am I audible, sir? Yeah. Dr. P.H. Kulkarni, sir, Indian Institute of Medicine. He is an author. He has written so many books on Ayurveda, and his specialty is that he has been encouraging his students to go abroad and practice. And he has at least thousands of doctors have traveled by him to other countries to propagate, to canvas, to do Ayurveda. The last name I would like to mention of one of my teacher, Professor Dr. Subhash Ranade sir. He's Professor Emeritus. I think Ranade sir has 200 to 250 books to his credits. He also has some books written in Germany, Portugal, and some other language, Spanish language also. He runs an academy here. It is International Academy of Ayurveda. And the members of International Ayurveda Academy are sent abroad to various destinations to practice Ayurveda, to different centers and different places in the world. So these are some of the people which I have seen in my career. As a teacher, I was also very much thankful to you that you provided me this platform, Pawan Sharma ji, and it was a very short period for me. But then too, I tried to tell you the best what I have. And I will tell you very frankly that Gujarat and Maharashtra have no difference, because the first conference, national conference, which I had organized in Pune under the name of Tathagat Ayurveda Research Foundation, was sponsored by Amul. The Amul, which is the brand of Anand. The Amul was the chief sponsor, and the name of the conference was Amul Ayurveda 2003. So thank you so much to you, Pawan Sharma sir, for giving me this wonderful opportunity, and also thankful to the host.
Thank you, sir. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, Vijayji. Madam, sir. Thank you, Pavanji. Vijayji, Pranamji, thank you so much for this Thank you, sir. swift Thank you, sir. but Thank very you, sir. detailed review. Aapke Tilak mein ji, with many people that we look up to, and one in particular is no more, Mama Gokhale. Yes, sir. Perhaps this was, and he was the first director, the founding director of Jamnagar, the Institute for Postgraduate Research in Ayurveda. I would like to also add, sir, one of the vice chancellor from Jamnagar University, Dr. Mo Lele, was also from Pune, sir. Oh, you see, there are so many. So just that one college has produced so many people, and you are now connected with that college. And Mama Gokhale was also very special because he gave Pune the Rasa Aushadhi, what is that institution that is there? I think Rajanji will be able to add this. Ayurveda Rasashala. Ayurveda Rasashala. And Jadhavji, I want to just add one thing. You know, I connect with the south of India, and I had never heard about something called Sukshma Aushadhis. And this, I'm told, is a very special, is a specialization of Maharashtra. Sukshma Triphala. The first time I heard this was in Germany. And one of the person there who's very closely connected to Dr. Vasant Lad is another Tilak Ayurveda person who is doing many things around the world. Yes, sir. Vasant Lad ji is also leaving a big parampara now in America, based in New Mexico. And it is a delight to be connected with all of you people in Tilak Ayurveda. I am particularly connected with Vishnu Joglekar ji. Yeah. He's my senior, sir. He's my friend, but he's a very high senior person to me, and he's a personal friend of mine. And I would also like to tell you that many people, they are known here from Maharashtra. They are also working in Gujarat. Gujarat people are working for Maharashtra. And really, sir, there should be no borders for any knowledge. That is what I think. And sir, I was very unfortunate that when I just came to Nidan, means I came to third year of Ayurveda, Dr. Sudhir Lad had to leave this country. He had some, I don't know what was wrong with the college, and then he went and settled in America. And then I had no chance visiting him again. But in 2012, I was honored with an award in America in Boston. So then from Boston, after receiving the award from Apna, I went to his place to meet him personally as my teacher. And he's also running a very big association called as NAMA in America. You might be knowing, sir. Yes, of course. So he was also my teacher, but I'm very unfortunate that I couldn't listen him. But I listened to him when he went abroad, sir. It's a delight. He was a very genius person, sir. Yes, it's a delight. He's also an artist. It's a delight to sit in his lecture his and diagrams. His diagrams in his charts are not removed from the college from right 50 years, sir. From when he is there. Now, the story goes like this. This is also part of the parampara, the Tilak and the Pune parampara, is that Vasant Lad ji told me about how he came into Ayurveda. And he says, when his grandmother was not well, Mama Gokhale came to the house. And he couldn't find a pulse on the grandmother, but he could locate a pulse in the leg somewhere. And then he caught young Dr. Lad, who was still a boy there. And he said, please write this prescription. This is what you have to give your grandmother. So he remembers Mama Gokhale telling him as a child what to do. And I've been very unfortunate to not see Mama Gokhale, sir. So these are, but it is very nice to hear from you, sir. This is a tradition in Pune. And last thing I want to, Vijay, every time, of course, Girish Tillu is there now in Pune at the university. You're also a student of Tilak. Now, the point I want to convey is a very simple one, connected to Parampara. For me, Pune is the world capital for Ayurveda education. Kyun? Kyunki at any one time, your lovely city has over 4,500 to 5,000 students of Ayurveda, undergraduates, postgraduates. Yes, sir. But somehow we are not marketing this issue correctly.
Yes. And I will look at you, and I have mentioned this to Rajanji, that we must project Pune not only as the Oxford of India, but also the world capital for Ayurveda education, You're because this perfectly right, sir. richness You're, that per- is you're there. perfectly right, sir. It's And a we- very great vision, sir. It's a very great vision from you, and we'll be happy to work with you, sir. We will look forward to. I have raised And this point again. a request to you, sir. Please don't call me Vijay ji. You can call me plain Vijay. We will discuss this offline. I will connect with Rajanji, and we look forward to seeing, because the parampara is so strong, Yes, sir. and we need to respect. We need to bow down to this parampara. You have given so many names today. They're all the giants of Ayurveda. And if we can even get a fraction of their skills for our students and to preserve it and to grow it, that will be not only for Pune, not only for Maharashtra, but for the whole world. Whole world, sir. Yeah. It will be a big thing. Thank you so much, sir. Namaskar. Thank you so much, sir. Thank you so much for finding time to Thank be you, with Pavan, us. sir, also. Thank you, Pavan, sir. Pavanji, floor is back to you. Thank you, Jadhav, for Thank you, sir. being here with us today. Thank you, Pavan, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, kindly Welcome, please welcome. allow me to leave this meeting now. Please, you are free to leave us, Vijay, and Thank you we so will much. be in touch to discuss this one Yeah, point. sir, we'll be in touch. I am in touch with Dr. Pavan. Right. He's a very good person, sir. He's a very good person. He contacted me first time. So it is a privilege to meet him. It's an honor to meet you also, sir. Thank you so much. Namaskar, Thank ji. you so much. Delight to have you here with us on this platform. Namaskar, ji. Thank Namaskar. you. Thank you. Thank you, Dr. Vijay. Thank you very much. Now I would like to request again from Gujarat, Kishor Chandra ji, respected Dr. Kishor Chandra Baldanea ji. Welcome, sir. हा माणूस कोण होता माहिती का तुला बोलतो मी? या माणसाने डीएनएचा शोध लावलेला आहे ऐक ना तर केम्ब्रिज मध्ये. हेलो हरिओम स्वागतम स्वागतम स्वागतम. हरिओम स्वागतम. आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर. योर अच्छा, ब्लेसिंग्स आर नीडेड. थैंक यू सर. आपके दर्शन नहीं हो गुजरात रहे. और आज इसके लिए क्या करेंगे? केवल वीडियो वाले पे उसको खोल दीजिए वीडियो को, तो हम लोग देख पाएंगे आप. बाकी आवाज क्लियर है सर. वेलकम आवाज वेलकम. क्लियर है? हाँ जी. वीडियो नहीं आ रहा है? आ गया सर, सब कुछ ठीक है. आ एवरीथिंग गया? इज ठीक है. यस. थैंक यू टू पवन कुमार शर्मा जी. वेलकम. आज हम सब साथ में महाराष्ट्र और गुजरात के दिन बना रहे हैं. इसके लिए सब वैद्यों को, महानुभावों को मेरा जय धन्वंतरी. वैसे देखें तो आज 62 इयर्स कंप्लीट होके 63 इयर्स में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र की स्वतंत्रता का दिन पर. सबको मेरा अभिनंदन है. और खास करके गुजरात के अंदर परंपरा की बात कहें तो हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएट में आए थे 79 में रसशास्त्र में करने के लिए, तब गुरु परंपरा भी कुछ हद तक चल रही थी. तो हम लोग भी गुरुजियों के कुटीर में जाते, उनके घर पे जाके और सीखते थे. तो वहां पर रसशास्त्र बेसिक करता डॉक्टर M.U. बहादुर साहब के एक्सपर्ट रात को 10 बजे से 12-1 बजे तक वहां पर जाते थे. कभी हरिशंकर शर्मा जी के पास जाते थे, कभी CP शुक्ला वगैरह के घर पर जाते थे. विनायक जी ठाकर थे. उस टाइम पर पूरे इंडिया के अंदर जो सीनियर मोस्ट आयुर्वेद के थे वो हमारे यहाँ जामनगर में थे. जामनगर और महाराष्ट्र की मैंने देखा कि परंपरा एक सी रही है. बाकी बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर देखे तो वहाँ पर मॉडर्न की परंपरा ज्यादा थी, लेकिन प्योर आयुर्वेद की जो पद्धति थी हमारी, जैसे कि रस औषधि निर्माण की बात हुई, भस्म वगैरह की बात होती है, तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर शास्त्रीय परंपरा चालू रही थी. तब हमारे 1910 में जुगतराम भट्ट जी जो जामनगर के थे, वो बहुत अच्छे फिजिशियन थे, वैद्य थे. महाराजा के भी चिकित्सक थे. यहाँ पर गुलाबपुर में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुई
महाराजा दिग्विजय सिंह के तरफ से। उस टाइम पर वीएम मेहता जी से बताया प्रेरक शाह वगैरह ने, तो वीएम मेहता जी मॉडर्न के थे, उन्होंने चरक संहिता गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में ट्रांसलेशन की थी और ये पूरा काम उन्होंने 6 वॉल्यूम में करके बहुत आगे बढ़ाया था। उसके बाद ये जड्डू जी की फार्मेसी पहले शुरुआत में यहाँ शुरू हुई, बाद में बॉम्बे वगैरह ट्रांसफर हुई। तब हम लोग वहाँ उनके पुरानी फार्मेसी में जाके उनका थोड़ा अध्ययन किया कि किस तरह उन्होंने ये फार्मेसी की शुरुआत की थी। तो जगत राम भट्ट जी ने 1910 के अक्टूबर के अंदर शुरू की। फिर उसके बाद देव कुमार और अनिता वैद ने भी उसमें थोड़ा आगे बढ़ाया और परिक जी ने भी और आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे पहले जो जामनगर में फार्मेसी बनी थी वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बनी थी। तो हम लोग वहाँ पर सब देखने गए थे फार्मेसी को किस तरह से उन्होंने, जैसे रसरत्न समुच्चय अध्याय 7 में रस वाग्भट ने लिखा हुआ है और कुलकर्णी जी ने उनका अच्छा कॉमेंट्री की है। तो उसमें वास्तुशास्त्र के लिए कैसे रसाला बनाया, यानी कि औषध फार्मेसी बनाए औषध निर्माण के लिए, तो वो उनका अभ्यास किया था। तो वहाँ पर हमने देखा जड्डू जी के घर पे जाके, तो जो अग्निकोण था, अग्निकोण जिसको साउथ ईस्ट कहते हैं, वहाँ पे भट्ठी वगैरह का काम, भस्म वगैरह का, कुपी पप्प वगैरह का काम हो रहा था। दक्षिण कर्म के अंदर पाषाण कर्म यानी कि चूर्ण वगैरह का काम चल रहा था। फिर नैऋत्य में शस्त्र वगैरह का काम, हथियार वगैरह बनाने की बात थी। और पश्चिम के अंदर प्रक्षालन या वाटर टैंक वगैरह का बात थी। वायव्य के अंदर शोषण, औषधि शुष्ककरण की बात। मोहन जी, हरिओम सर। हेलो हरिओम। हरिओम, आवाज आता है? जी। कट गया हेलो, जी बीच में, बस आ गया। आवाज आती है अभी? हाँ, आ रही है सर। हाँ, उत्तर दिशा के अंदर जो, जैसे कि उत्तर दिशा कुबेर की होती है, तो वहां पर प्रेशियस मेडिसिन वगैरह या रत्न वगैरह की वहां पर रखने की बात थी। ईशान कोण साक्षात शिव जी का है, तो वहां पर तैयार दवाई रखने की बात थी। तो इस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से जड्डू भट्ट जी ने ये शास्त्रोक्त पद्धति से आयुर्वेद की फार्मेसी की शुरुआत की थी। तो इस तरह से जो जामनगर की जो परंपरा थी, तो उन्होंने आगे बढ़ा के आगे निभाया। और बाद में जब बॉम्बे जाके उन्होंने अपनी फार्मेसी एस्टेब्लिश करके बहुत अच्छी तरह से, जिसको बोलते हैं कि मैनकाइंड के लिए, लोगों के सुखाकारी के लिए। और उस टाइम पर इतना प्रचार नहीं था, वही लोग ही डायरेक्ट दवा देते थे। पर उन्होंने देखा कि वो दवाई सीमित देते, कॉमन लोग तक नहीं पहुंच सकते थे। तो कॉमन लोगों को पास पहुंचाने के लिए जड्डू जी ने 300 के ऊपर ये दवाई अलग अलग शास्त्रीय बना के और रिजल्ट ओरिएंटेड बना के सबको दी। तो इस तरह से फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट उन्होंने शुरू किया था परंपरा के हिसाब से। वैद्य सीपी शुक्ल जी से हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चिकित्सक थे, तो उन्होंने भी पूरी चरक संहिता पर बाय हार्ट की थी। इस तरह भरत भट्ट करके हमारे यहाँ थे, वो पूरा अष्टांग हृदय उनको कंठस्थ था। सतीश शर्मा, माधव निदान वगैरह उनका कंठस्थ था। और विधायक जी ठाकर की तो बात ही अलग है, पूरे बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर उन्होंने किया। एक अथः सब्जेक्ट से शुरुआत होता है, सब्जेक्ट की शुरुआत, वो अथः समझाने के लिए 1 महीना तक उन्होंने प्रवचन दिया, अथः क्या मीनिंग। तो इस तरह गहन विद्याभ्यासु आयुर्वेद के परंपरागत वैद्य, जिसमें ये सीपी शुक्ल, ठाकर जी, शास्त्री साहब, हरिशंकर शर्मा जी, ये बहादुर साहब, तो अलग अलग विभाग के अलग अलग निष्णांत यहाँ पर हुए। और पूरे इंडिया में उन्होंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को भेज के अपनी प्राचीन परंपरा को उन्होंने जारी रखी थी। तो उसके साथ हम लोगों भी जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था कि
टीचर्स के वहाँ गुरु परंपरा में भी जानकारी लेते थे। बाद में अभी जो हो रहा है तो कॉलेज का ही डायरेक्ट संपर्क होता है प्रोफेसरों का। तो हम लोगों का इतना संबंध था प्रोफेसरों के साथ और गुरुओं के साथ कि उनके कुटीरों में जाके उनके घर जाके हम लोग सीखते थे। और बाद में हम लोगों ने अलग अलग विद्याएं भी सीखी, जैसे कि आयुर्वेद के साथ संपर्क में रहे और हमारे अल्टरनेटिव थेरापी का भी लाभ मिले। उसके लिए ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो भी हमने थोड़ी सीखी थी। तो ज्योतिष शास्त्र के साथ आयुर्वेद का रोग का क्या संबंध और चिकित्सा का क्या संबंध, वो हम लोग के मेडिसिनल प्लांट जो दिव्य औषधि है, धन्वंतरी वगैरह गार्डन तो बनाते ही थे, लेकिन राशि वन, नक्षत्र वन, ये सब वन, ऋषि वन, नवग्रह वन, अशोक वाटिका, ये सब प्राचीन शास्त्रों से निकाल के हमारे गुरुजी एक बोटनिकल गार्डन के डायरेक्टर बहादुर साहब ने एक किताब लिखी थी, जिसने फॉरेन की यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था कि पीएचडी डिग्री आप दे सकते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, इट इज नॉट फॉर यू, इट इज ओनली फॉर इंडियंस। तो उन्होंने वो डिग्री रिजेक्ट करके ये किताब लिखी थी। उसमें मैं गुजराती राइटर था और डॉक्टर आचार्य करके साउथ के थे, वो इंग्लिश राइटर थे। वो पूरी किताब डिवाइन मेडिसिनल प्लांट गार्डन वो एक उस टाइम पर तैयार की हुई थी। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र चिकित्सा शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो पेशेंट कहाँ सोता है, कैसे सोता है, उसका क्या वास्तु घर का कितना है, कैसा है, वो देखने के लिए भी हम लोगों को सिखाया गया था। तो समारंगण सूत्रधार और विश्वकर्मा प्रकाश पुस्तकें लेके हम लोगों ने वास्तु सीखा था। तो उसके साथ साथ पिरामिड सब्जेक्ट है, इजिप्शियन पिरामिड है, तो उसके अंदर कोई दवाई रख के उसका पावर बढ़ा सकते, ऊर्जा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो वो भी हम लोगों ने वो ट्रायल किए थे उस टाइम पर। तो उसमें अलग अलग विद्याएं, 10 विद्याओं का कुल अल्ट्रासाइकोनिक विद्या भी आते हैं, फिलोसॉफी स्पिरिचुअल आता है, वास्तु आता है, योग साइंस आता है, अल्केमी साइंस आता है, इस तरह तंत्र साइंस भी शुरू में आता है। तो ये सीक्रेट प्लांट साइंस वगैरह के साथ जोड़ के और उसके साथ मंत्र शक्ति वगैरह जोड़ के फिर औषध बना रहा है। जैसे जड्डू भट्ट जी भी औषध बनाते थे तो मंत्र चिकित्सा के साथ, और उन्होंने मर्दनम गुणवर्धनम सिद्धांत बहुत अच्छा अपनाया था। तो उन्होंने अपनी एक खरल बनाई थी, जैसे हमारा मैनुअल हाथ से हम लोग घुटन करते हैं, मर्दन करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक छोटी खरलों बना के उन्होंने ये दवाई की शुरुआत की थी। तो इस तरह से पूरे आयुर्वेद के सिद्धांत लेके अलग अलग थेरापी का डेवलप हो रहा है। अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 19 तारीख को शुरू किया ग्लोबल सेंटर का, उसमें विश्व बैंक के डायरेक्टर WHO के 137 पद्धति आयुर्वेद की और 140 कंट्री वाले देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आए थे। तो करीब $225 बिलियन का अभी 35 एकर्स में पूरा ग्लोबल मेडिसिन का यानी अल्टरनेटिव थेरापी का आयुर्वेद के साथ वो विकास होने जा रहा है। तो हम लोग, हमारा भारत का सौभाग्य, खास करके गुजरात का भी, और गुजरात के साथ जुड़ा हुआ महाराष्ट्र, तो उनको अलग करना ही नहीं है, भले अलग हो गया राज्य से हिसाब से, लेकिन परंपरा के हिसाब से मैं समझता हूँ तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की परंपरा एक आयुर्वेद के लिए एक जैसी है। तो हम लोग सिर्फ आयुर्वेद के साथ दूसरी भी पद्धति का थोड़ा सा उपयोग करें और चिकित्सा के अंदर उपयोग करें तो ज्यादा बेनिफिट पेशेंट को हो सकती है। ये मेरा एक वक्तव्य है। सबको मेरा आभार, पवन शर्मा जी को खास करके थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, वेलकम। आपने हमेशा हमें ब्लेस किया स्टूडेंट लाइफ में भी, आज से 35 साल पहले, और वैसे ही आपकी ब्लेसिंग आज मिली। हम आपके बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। जरूर जरूर, सबको मेरा प्रणाम। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। मैं अब अपने वक्ता आदरणीय डॉक्टर शेख साहिब को, जो
प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल, गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद, बहुत ही सीनियर डिग्निटरी हैं आयुर्वेद की। हमेशा आयुर्वेद के लिए उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। अखंडानंद को एक बहुत अच्छा रूप देने में डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। मैं ऐसे आदरणीय, और वो कितने, आई सैल्यूट हिज जील, वो अभी रोजा खोल के हम लोगों के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। मैं उनको एडवांस में ईद मुबारक देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अब स्टेज उनका है। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सर एंड प्लीज ब्लेस अस। डॉक्टर शेख साहब, kindly unmute yourself. Am I audible? Yes. Am I audible to you, sir? Yes. Welcome, sir. जी Welcome. हाँ जी शर्मा जी, आप सुन रहे हैं आप? Yes, yes, sir. स्वागतम, स्वागतम, खुशामदीद। जी खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको ईद मुबारक एडवांस में कह दिया। मैं माफी चाहता हूं कि मुझे कुछ देर के लिए अलग होना पड़ा, इफ्तारी का वक्त था, इसलिए मैं सभी वक्ताओं से थोड़ी देर के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन फिर से मैं ज्वाइन हुआ हूं। और सबसे पहले तो मैं आपको आभार कहना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। अभी का प्रैक्टिकल आयुर्वेद के हिसाब से गुजरात का तो अपना एक अलग ही हिसाब है, और लास्ट 2 इयर्स में कोरोना में जो गुजरात ने जो किया है, हालांकि पूरे देश में आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार बहुत ही हुआ है, लेकिन गुजरात में हमने सारी हॉस्पिटलों में जहां रेमडेसिविर और टेसिजाबिलम काम नहीं कर रहे थे, वहां हमने हमारे संसमनी वटी और जो यष्टि मधुघन वटी और जो CCRS के हिसाब से जो मेडिसिन थी, उसके हिसाब से हमने जो ट्रीटमेंट किया और उसमें हमने जो रिजल्ट लिए वो बहुत ही रिमार्केबल हैं। और ये पूरे गुजरात में और पूरे आज तक पूरे भारत में ये सब माना जाता है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कोरोना में काम हुआ है। और इसका श्रेय हमारे आयुष सेक्रेटरी जी श्री कोटेजा जी को और हमारे तब के नियामक को मैं देता हूँ। और गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया कि एलोपैथी हॉस्पिटल्स में जो भी बेड थे उसमें से हमको कुछ बेड दिए गए और वो उस बेड में हमको चिकित्सा करने का मौका दिया गया और उसमें हमने रिजल्ट लिया। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके बाद का जो स्टेज था कि कोरोना में जो पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस हुए और वो भी जो म्यूकरमाइकोसिस जो हुआ और जिसमें लोगों ने 15-20 लाख रुपए खर्चा किया और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, किसी की आंख जा रही थी, किसी का दांत जा रहे थे, और उसमें हमारे वैद्यों ने रिमार्केबल काम किया है और वो हमने रिकॉर्ड किया है। हमारे रिकॉर्ड में है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और उसके संलग्न सारी गवर्नमेंट की कॉलेजों ने और सारे हॉस्पिटलों ने मिलके आयुर्वेद को एक नए आयाम पे लाके रखा है। मैं और भी ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल गुजरात में आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लास्ट 5 इयर्स में गुजरात में कम से कम 40 कॉलेज आयुर्वेद के नए हुए हैं और उसके साथ साथ ही होम्योपैथिक का भी इतना ही विकास हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए आयुष सेक्रेटरी श्री कोटेजा जी के आने से आयुष का पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ है और सभी को मौका मिला है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल लोग एलोपैथी के बाद सीधा आयुर्वेद और होम्योपैथिक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैं एक बीइंग एडमिशन कमेटी मेंबर में ये भी कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक की सीट गुजरात में फुल हो रही है, एक भी सीट खाली नहीं है। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जबकि डेंटल की सारी सीटें खाली पड़ी है। तो ये एक बहुत रिमार्केबल बात है कि आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार हो रहा है। और जो हम 25-30 साल पहले देख रहे थे कि आयुर्वेद का कहीं कोई सिटी में कहीं 1 या 2 वैद्य देखने को मिलते थे, आज हर एरिया में हर जगह पर वो देखने को मिलते हैं वैद्य, और पंचकर्मा के सेंटर देखने को मिलते हैं,
केरला आयुर्वेदिक देखने को मिलता है, चार सूत्र देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा आयाम हमने सिद्ध किया है आयुर्वेद के लिए। और ये इसलिए नहीं किया है कि हमने नॉलेज बढ़ा दी है, लेकिन लोगों का विश्वास हमने जीता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रेजुएट बढ़ गए और प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन लोगों का विश्वास इतना बड़ा है कि आजकल लोग हमको प्रेफरेंस देने लगे हैं। और जो भी मिल रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लोग सीधा पहले आयुर्वेद के पास आते हैं, नहीं कि पहले एलोपैथी के पास जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा आयाम हमने सिद्ध किया है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ गुजरात में। और मैं अपनी बात करूँ तो अखंड नारायण के हिसाब से, अखंड नारायण को अभी एक हमने मॉडल कॉलेज में शिफ्ट किया है, जो कि 200 करोड़ रुपए का हमने बनाया है कोलवड़ा में, जो गांधीनगर के पास है। और जहाँ पूरे बेड भरे हुए रहते हैं, मतलब वहाँ वेटिंग में रहता है, पेशेंट को एडमिट होना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी हॉस्पिटल, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट हो रहा है। और पहले जो हमारे वक्त में एक इमेज थी 25-30 साल पहले कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में कौन देखता है, तो आज वो पूरी इमेज हमने चेंज करके रख दी है और आयुर्वेद को एक नए शिखर पर लाके हमने रखा है। तो ये सारी बातों का श्रेय हम हमारे नए ग्रेजुएट्स और उनको देते हैं। और जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं संहिता के हिसाब से भी, और संहिता को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ले जाके, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन करके, आजकल ये नहीं है कि हर आदमी चूर्ण लेने को तैयार है, काढ़ा लेने को तैयार है। तो हमने उसका मॉडिफिकेशन किया है और पेशेंट को कैप्सूल है, पील्स है, ये और अर्क बना के और सत्व बना के दिया है। तो ये सारी चीजें हमने बना के जो दी है, उसका आयुर्वेद पे बहुत गहरा असर हुआ है और लोगों ने आयुर्वेद को दिल से अपनाया है। तो ये सारी बातें मैं अपने हिसाब से रखना चाहता था और मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पवन शर्मा जी, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके पहले दर्शन हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपके ज्ञान से हम लोग हमेशा लाभान्वित होते रहें। प्लीज जी सर, हम लोगों से जी जुड़ते सर, रहिए। ये जी आपका सर, प्लेटफॉर्म है और हर प्रोग्राम में कोई ना कोई गुजरात का हो, ऐसी हम आपसे आशा रखते हैं, क्योंकि यू आर द बेस्ट रिसोर्स पर्सन देयर सर। आप हैं, थैंक यू किशोर सर, जी हैं, सभी रिसोर्स पर्सन हैं बहुत अच्छे। और आप थैंक यू लोगों के सर, आशीर्वाद से 1100 गुरु बने हैं सर इस वेबिनार में। आज 365 वेबिनार हुई है। कम से कम मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 1100 गुरुओं ने राइट फ्रॉम यंग जनरेशन टू सीनियर मोस्ट हमें आशीर्वाद दिया है। और एक और तमन्ना पैदा हो गई है दिल में कि इतना ज्ञान बुढ़ापे में क्या करूंगा, अगला जन्म भी भगवान दे तो आयुर्वेद में दे। मैं 5 पीढ़ियों से आयुर्वेद में हूँ और मेरी बेटी भी इस समय 3rd ईयर में है श्री श्री इंस्टीट्यूट बेंगलोर में। आभार, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब वैद्य राजन पटनकर सर, रामपाल सोमानी सर से आग्रह करता हूं। डॉक्टर रामपाल सोमानी जी मेंबर हैं फार्माकोपिया कमेटी के, एक्स ड्रग कंट्रोलर थे राजस्थान के। वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर सोमानी सर। रामगोपाल जी सोमानी फ्रॉम राजस्थान, शायद वो जुड़ रहे हैं, जुड़े। वेलकम सर। हमारे साथ गुजराती मूल के एक और बहुत अच्छे वैद्य हमारे साथ हैं, जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, डायनेमिक हैं। वैद्य जयेश ठक्कर, यहाँ कलकत्ता में एक प्रख्यात नाम है और उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है यहाँ बंगाल के लिए कि ही इज द बेस्ट रिसोर्स पर्सन इन वेस्ट बंगाल, एज आई होप। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जयेश ठक्कर, वैद्य जयेश ठक्कर, प्लीज। नमस्ते, प्रणाम सर। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा वेबिनार और बहुत कुछ सीखने मिला। और जैसे दीप से दीप जलते जाए तो ही परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। एक से एक हमें और भी ऐसे वेद तैयार करने हैं। गुरु तो जैसे बात भी हुई थी वेबिनार में, गुरु शिष्य ऐसे बनाए कि वो उनसे आगे निकले, और तभी हम लोग आयुर्वेद को हर गांव में हर लोगों तक ले जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 365 वेबिनार है, इतने स्पीकर्स और सब लोग रिसोर्स पर्सन हम लोग से जुड़े,
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्ञान की गंगा चलती रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम महाराष्ट्र और गुजरात से यदि अलग निकले, अग्निहोत्री जी इस समय कहीं काम से गए हैं, लेकिन मैं यदि यहाँ से बाहर निकलूं तो तेलंगाना के रूप में मेरे साथ जगदीश्वर जी हैं, जो आज अपना संक्षिप्त आशीर्वाद क्षण हमें दें तो बड़ी कृपा होगी। आदरणीय जगदीश्वर जी, और ये लिंक भेज दी गई है यूट्यूब की, काइंडली आप लोग जुड़ते रहिए। जितनी हम लोगों की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती रहे, उतनी ही हमारी एक चेतना का जागृति होगी और आप लोगों की हम पे कृपा होगी। जगदीश्वर जी, आदरणीय जगदीश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट है लेकिन आवाज। नमस्कार। सभी लोगों का मेरा विनम्र प्रणाम। इतना अच्छा परंपरा खींचते आए हैं कि सब लोग ने जो पूर्व रूप था और आज के रूप कैसे हैं, और परंपरा तो गुरु का तो बोल ही नहीं सकते। गुरु रेव ब्रह्म न परा, किस तरह से उन्होंने साक्षात्कार करता ये परमात्मा जाने। तो इसमें जो आयुर्वेदिक साइड में जितना ओबीडियंस और जितना फेथ और जितना फॉर्म अचीवमेंट जो होता है, शायद और कोई थेरेपी में हो नहीं सकता। एंड यहाँ पर जो खासकर वैद्य परंपरा में हर एक ने अपना गुरु का नाम का प्रस्ताव करता है, ये एक विशेषता है। और साथ ही साथ एक बार मैं सुना हूं मेरा गुरुदेव से, देखो तुम जब ऐसा समझते हो परमात्मा को पकड़ना, तुम पकड़ नहीं पाते हो। क्यों? तुम्हारा शक्ति उतना नहीं है परमात्मा को पकड़ना। अगर सोचो कि तुम दो स्पेसीज के बारे में बताता हूं, एक बंदर और दूसरा बिल्ली। बंदर जो कूदते रहता है, उसका जो जेने पकड़ करके रहता है, उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि कूदना ही रहता है, लेकिन बच्चा गिर जाएगा या नहीं उसका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बिल्ली क्या होता है, बिल्ली अपना बच्चा को जेने उसको उठा करके ले जाता है। तो तुम ऐसे ही बनना बिल्ली का बच्चा जैसा, बंदर का बच्चा नहीं बनना। क्योंकि तुम्हारा शक्ति तो पकड़ने का है या नहीं, वो ख्याल जो है ना उनके लिए नहीं होता है, वो कूदते रहता है। इसलिए परमात्मा से इतना ही निवेदन करो, मैं बिल्ली का बच्चा बन सकता हूं लेकिन बंदर का बच्चा नहीं बनता। तब जो है ना परमात्मा कृपावान होता है तुम्हारे को कैसा उठा ले जाना। तो ये जो गुरु परंपरा का जो होता है, ये वास्तव में जो है ये बताने का तरीका है समर्पण करना। भक्ति का मार्ग में हमेशा अहंकार के ज्ञान आया तो अटक गया। जब अहंकार का बोध नहीं होता है, तब जो है ना वो पा लेता है, भक्ति मार्ग में आ जाता है। जी सर। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा में भी कभी भी मैं ये नहीं देखा कि जो कुछ हासिल करे तो गुरु से विनम्रता से जो है उनको मेरा गुरु करके पुकारते हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट लाइन ऑफ ट्रेडिंग इन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन in the world, what we can claim clearly. तो इसी से ये जो परंपरा का प्रस्ताव करे, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं अब आदरणीय अग्निहोत्री जी से प्रार्थना करता हूं उनके वैल्यूएबल कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। मैं चाहता था उसके पहले मैं राधिका जी से प्रार्थना करता हूं कि आज की वेबिनार उनको कैसी लगी। हमने डायरेक्ट एंट्री अब रिस्ट्रिक्टेड कर दी है बिकॉज ऑफ हैकर्स एंड जूम बॉम्बार्डिंग। तो वो जूम बॉम्बिंग जो हुई हमारी 2 वेबिनार में, तो हम बड़ा सिलेक्टिवली वेबिनार में
एडमिट करते हैं। वेलकम राधिका जी। राधिका जी भी ज्वाइन है हमारे साथ, यदि उनके कुछ कमेंट्स हों। अदरवाइज हम आदरणीय अग्निहोत्री सर से निवेदन करते हैं कि वो अपने वैल्यूएबल एक्सपर्ट कमेंट हमें दें। बोले। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार प्रमोद शर्मा जी। राधिका जी नहीं ज्वाइन कर रही हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। सो वेरी हैप्पी गुजरात डे, वेरी हैप्पी महाराष्ट्र डे, at the same time very happy May Day and also the Laughter Day. We are today in 365th webinar of our IRES with a great mark and achieving the mark day by day to its increasing order. First of all, I would like to pay my respect and regards to Professor Madan Thangveruji, Professor Rajan Patankar ji, Dr. Pawan Sharma ji, our Radhika Nagraj ji, Dr. Jagdish Doma ji, Dr. Dharmadhikari ji, Dr. Shaikh Khan ji, our Nilesh Gandhi ji, Dr. Kishor ji, Vaidya Jayesh Thakkar ji, and Vijay Jadhav ji. So we were equipped with a lot of great authorities covering Gujarat state and Maharashtra state as well. And all credit goes to Vaidya Rajan Patankar ji. With all his great efforts, we could have the pleasure to hear all these persons who have dedicated their life in the greater cause of the Ayurvedic upliftment and for the removal of the sufferings of the sufferers. Well, our Dharmadhikari ji very confidently and with a great long experience talked about the way he was taught by the great scholars of Ayurveda with their traditional setups, traditional uplinking and downlinking, and along with the basics of Ayurvedic diagnosis. I definitely marked that line when he talked that he has got a wonderful guru named Anant Dharmadhikari ji, and who was so particular to go for the feces or stool parikshan for each and every patient whosoever is coming to him, and he was nicknamed as Malacharya. He taught all the knowledge to his disciples and the students that get the all 13 sotas checked, then only you will be in position to diagnose the patient clearly. He also named our very good friend Dr. Kuldeep Raj Kohli, who had been Maharashtra director in those days when he was asked to work, though he worked from there in 1996 to say up to 2017. Dr. Kohli had been my immediate junior in BHU. So in that way, I know he has got a wonderful personality, and he knows how to take the best of the output from any of the adhikari, any of the medical officer, teacher. He has got a very staunch personality with a say speciality to take out the best. So I think our Dharmadhikari became the best say a person to give the impetus to his colleague's requirement. Wonderful his speech. And then there was some glitch over the net problem, so I could not hear much more. But it's a great that may it be Gujarat or may it be Maharashtra. Since Maharashtra has got the most number of Ayurvedic colleges, as he told that say 73 or so, 16 are government college or rest of the private sector colleges. But if the faculty is full, if the resources are full, then definitely the knowledge given by the gurus
will go to their disciples, to their students, and these students will naturally cherish this knowledge to the wider scope, and they will again become the banyan tree of the knowledge. So I think this parampara has got a very important factor, especially as far as the Maharashtra is concerned, Gujarat is concerned. They have got typical side of their knowledge. Just that Kerala persons are fond of the Ashtanga written by Acharya Bhagwat, while as our North Indians are always after Chara Sangita. So the combination of all knowledge from north to south or east to west is equally important for the betterment of the Ayurveda and for the better services for the suffering humanity. So today's speakers, they paid full attention with their knowledge and experience that how the Ayurvedic knowledge is flourishing in Gujarat, in Maharashtra, and we all know that the first Ayurveda university there in Gujarat, at Gujarat Ayurveda University, Maharashtra has got already a great combination of say Aripudwar College, which is one of the very old colleges. So goes the case with the GSS, means the colleges which are run in Pune. A group of the Maharashtrian sector, those who are running with their own establishment, irrespective of the resources of the government sector, they made a very good knowledge. Especially our Patankar Sahib is the living example of that. That irrespective of their support of government sector, he is running that too. At present, he is running and he is producing lot of knowledgeful students. So today's webinar, with a special reference to the upliftment and the maintenance of the tradition in Maharashtra, in Gujarat, the Ayurvedic parampara is still having its own aspect and own face work, or for knowledgeable persons to go and see how Jamnagar is working, how Podda College is working. So this is what the old persons are there to inform us. So our webinar is well informed and well made knowledgeable by these supporters, our Dharmadhikari and persons coming from Gujarat. So our greetings to all these today's distinguished speakers, along with the persons who graced the occasion, including Dr. our Jagdishwar Domaji, Professor Dr. Rajan Patankarji, JSG. I missed today our Vishnu Prasad Sharmaji from Guwahati. He is always there to inaugurate our webinar, but we missed. But the starting remarks given by our Professor Madanji, that it is very painful when a thing is divided. And the great Mumbai Pradesh was divided into two pieces, one Maharashtra and the other one is Gujarat. So this is always painful. But the way the network done by Pawan Sharmaji, that one person from Maharashtra, one speaker, and the other speaker from Gujarat. So in this way, Tana and Bana, one after other, one from one state and one from other state. This made the whole scenario peaceful and with a good goodwill and laughing status also. So he covered May Day, Maharashtra Day, Gujarat Day, and the Laughter Day. And tomorrow we are going to have again a very good session with a light mood, with a Kavishas Vinodene Kalo Gachata Dhimtam, Vasrin Chamurkhanam Nitra Kalhenva, and the gracious presence of Madam Radhika Nagrajji on my request is also a great surprise to us. And all greetings to all the speakers. God bless them. And be immortal our webinar IRES. Thank you so much. Thank you, Pawan Sharma. Thank you, sir. Pawanji and Agnihotriji. Okay, thank you, everybody. Thank you, sir. Okay. Thank you, Professor Pawan. Asha, ma'am, namaskar. Acha, you are there. Acha. Thank you so much. अभी वेबिनार एक शुरू हो रही है संजीवनी पर। आज विश्व आयुर्वेद परिषद ने एक वेबिनार रखी है। आप लोग चाहें, आपका स्वागत है। मैं अभी लिंक आप लोगों को भेज रहा हूं। आज विनोद उपाध्याय जी संजीवनी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी जस्ट शुरू होने जा रही है। मैं उसकी लिंक आप लोगों को भेज रहा हूँ। धन्यवाद। स्वागत है। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.
जुड़ते रहिए सर। थैंक यू।